over here. So if you want to show any kind of things over here, you can share your screen. मैं आपको host बना Sure. रहा हूँ यहाँ पे, या फिर I'll give you the access to share the screen. Just give me a minute. Hmm. So Fine, no I'll worries. stop this. Yeah. Shall I stop my Mhm. screen over here, Sandeep ji? Yes, let me just confirm whether it's all good now. You can hear me, guys, right? Yes, 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 yes. Acha, okay. So, fine, let's start. Yeah, Good morning, everyone. yeah. Just a minute. You can make me host. Yeah, I've made you the host. You can share your screen, Sandeep ji. Over here. Acha, okay, okay. Let me just check it. Just give me a moment. Yeah, is this up? Just confirm, huh? Yeah. And guys, let me tell you कि वो directly company का नाम नहीं लेंगे because this is something very much confidential. So Mhm. as I've told you that he's working with one of the brand IT companies in India. तो हर एक जगह वो अपनी company का नाम mention नहीं करेंगे because there are some policies of the companies which where they can't disclose a lot of things about the company. There are a lot of sensitive information. So please try to understand these things. So वो अपना journey, संदीप जी आप इनको देखिए, ये जो हमारे स्टूडेंट्स है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये Mhm. बेसिकली मैक्सिमम पीपल ओवर हियर आर जॉब सीकर्स। हाँ, जो लोग यहाँ पे जॉब देख रहे हैं, तो वी Mhm. वांट यू टू टेल देम दैट हाउ डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी, आपने कैसे शुरू किया, आपका एजुकेशन क्या हो चुका है, आपने कौन से एजेंसीज के साथ काम शुरू किया, फिर कैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते गए, आपको इस Mhm. आईटी कंपनी में कैसे अपॉर्चुनिटी मिला, हाउ डिड यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, व्हाट वर द काइंड ऑफ राउंड्स ओवर हियर, एज व्हेन यू जॉइन दिस कंपनी आपका रोल क्या था, आज आप कौन से रोल पे हो, अगर यहाँ पे प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस आई एम जस्ट, मैं मेरे साइड से बोल रहा हूँ, लेकिन वी आल्सो हैव अदर पीपल, वी हैव गाइस, वी हैव अराउंड 25 27 पीपल ओवर हियर। तो गाइस यू कैन आल्सो आस्क योर क्वेश्चन, बट मेक श्योर गाइस आपके क्वेश्चंस सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक के रिलेटेड ही रहे। don't go to the irrelevant topics. This is a request to you all because we hardly have 1 hour stand. So इसमें हमारा सेशन ऐसे होना चाहिए कि आप लोगों को वैल्यू ऐड होनी चाहिए। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ आवर सेशन। सो यहाँ पे संदीप जी यू कैन स्टार्ट। या, Yes, थैंक यू। thank you, sir, for this brief introduction. I think you have covered everything about, where I'm working, and basically, you have also informed your student that I have been a part of a School of Digital Marketing earlier. So, guys, first of all, thanks for joining this session. Rohit sir is, putting a lot of efforts to give knowledge, value addition things for their students and followers who are into digital marketing. So that is a very, this is a very fortunate thing that you are getting such kind of guidance. So good morning, everyone, and thanks for joining. This is a Saturday morning. This is a quite challenging for us because everyone is into mood of celebrating their weekends, and they have plans with their families and everything with friends and all. So also one more thing, that is the Durandar is has been released, and we are seeing that Durandar movie is getting a lot of hits. Uh, Even I am also plan to go to watch a movie today evening. Okay, so it's not about Durandar's promotion. I am just telling you about the weekend plans. Okay, so getting back to the digital marketing session. So see, basically, when I search for digital marketing, is how I got to know about Rohit sir. Actually, will tell you one thing. When I completed my MBA in marketing from Srinagar Institute, Pune, so I found that we need to. Everyone is doing some conventional type of marketing. Everyone is wants to join sales profiles and also I dig down something which is correlated with the technology and also marketing related things. So I got to know about digital marketing that time. And when I search for a few institutes which can give me additional information about it, how digital marketing works and everything. So that time I got to know about Rohit Sir's Institute, and then I inquired a few more institutes also. And I took a decision to join School of Digital Marketing, and this journey has started onwards. Today, I'm feeling quite nervous because the person who taught me about digital marketing, I'm speaking in front of him only. So that is a I though I got an opportunity, but still this is a nervous thing for me. So fine. So anybody just anyone or anybody have any doubt so far, you can note it down because I just want to add a disclaimer as Rohit sir has mentioned that I am working with a TCS and due to some privacy and confidentiality policy, I can't disclose many more things.
It's a part of a professional culture because I am associated with one of the organizations, so I can't disclose these things. So coming back to the digital marketing, as everyone knows about, it's a era of a digital world. Everyone is going online. It's not only about making your presence across internet, but making your digital footprints across internet, making your space, creating buzz about your product and services, as well as finding the customer. So this is overall the definition comes. The overall view is about the digital marketing, and this is not only you know like you just started with it, like just you have set up your social media page or a website. It's not like that. You need to put, the company has to put, the digital marketing team or the agency has to put lot of efforts to go ahead and how they can grab the customers, how they can go ahead with generating the revenues, how they can engage their audience, how they can increase their views and followers across the internet. So all those things are comes under digital marketing operations. Hope you are aware about all those things. So let me just start with the what kind of digital marketing work that we have as of now. So see, basically, I will tell you about my journey. When I completed my course from School of Digital Marketing, my first love was the agency to work with. I just want to start my work with the agency, but I got an opportunity to work with uh, in-house. That is, I joined my first journey from Indotech Industrial Solutions, so where I joined as a digital marketing executive. So I worked in-house and all the responsibilities like, SEO, then social media handling. That company has hired an agency to manage their websites and all. So I also manage web development agency that time. I started my journey basically in-house. So all kinds of responsibilities I worked from the first organization. Meanwhile, I will tell you Uh, one sorry thing. to sorry to interrupt, Sandeep ji. I wanted to Yes. ask something over here. So Uh-huh. you are saying that you started working with a company that was in-house. So guys, in-house Yes. what in-house का मतलब क्या हो रहा है? संदीप जी ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया था जिनका डिजिटल Mhm. मार्केटिंग पूरा हैंडल करना था और उन्होंने एक्चुअली संदीप जी को भी हायर कर लिया एज अ डिजिटल मार्केटिंग इन-हाउस के लिए। प्लस उन्होंने कुछ काम उनका जो था, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है जो कुछ काम इन-हाउस करती है, कुछ काम को वो आउटसोर्स करती है। तो संदीप जी ये कहना चाह रहे कि उन्होंने Mhm. कुछ काम के लिए संदीप जी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी कि बाबा चलो एसईओ या फिर सोशल मीडिया ऑर्गेनिक आप इंटरनली हैंडल करो, पेड कैंपेन्स हो सकता है यहाँ पे उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। सो दैट इज लाइक यू कैन एक्सप्लेन जरा संदीप जी यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताए ना कि आप इन हाउस Yes, क्या yes, करते थे, बिल्कुल। आपने आउटसोर्स कौन सी चीजों को हम्म, दिया था, आउटसोर्स आपने क्यों किया हम्म, था उन एजेंसीज को, वो काम भी आपने हम्म, इन हाउस क्यों नहीं किया? तो जरा इस पे आप बता सकते हैं कुछ? Right, right. Yes, this is the exact pinpoint, sir, you have highlighted. Now, I हम्म, will tell you there are two things. When you start, if you want to start working with a digital marketing profile, then you have an agency, and second one is in-house. So in-house is nothing but you have to work, with the company, with the sales team, with the management of a company to promote your product and services. So meanwhile, uh, within in-house only there are two types of things, right? You have to manage your own, that is execution and everything. आपको सब सारी चीजें आपको मैनेज करना होता है, जैसे कि फ्रॉम एग्जीक्यूशन से लेके आपको, जैसे आपका क्रिएटिव डिजाइन होता है, या फिर आपका पेड एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया होता है, या फिर ईमेल डिजाइनिंग, ऑल एवरीथिंग यू नीड टू मैनेज योर ओन, दैट इज फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज दैट again you can work with the agency. Okay, you can hire agency for all your work. You need to just monitor agency. You need to ask them, yes, I want to run this kind of paid campaigns. I want to run this kind of social media campaign. I want to post this social media postings. We are having an event, upcoming event. So that you can ask the agency and ask them to get the things done. तो ये आपका दो टाइप का काम होता है एजेंसीज में. कैसा मैं जब जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ था वहां पे, आई हैंडल्ड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज माय ओन. जैसे कि एसईओ हो गया, पीपीसी हो गया, गूगल एड्स, या फिर लिंक्डइन का जो भी था, फेसबुक का जो भी था, सोशल मीडिया. देन वी हैव
email marketings and all. I already handle my हाँ। own. So basically मेरे पास जो एक्सपर्टी नहीं थी वो मैंने आउटसोर्स किया, जैसे कि वेब वेब डिजाइनिंग का जो था, वेब डिजाइनिंग का पार्ट जो था, वी हैव आउटसोर्स फ्रॉम दी वेब डेवलपमेंट एजेंसी. सो इट डिपेंड्स ओके। अपॉन कंपनी टू कंपनी या कि तो संदीप जी, वो कहीं. यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा। हम्म. तो आपने यस. जैसे गाइस देखिए, इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, इन्होंने ये बोला है कि मेरे पास जो एक्सपर्टीज नहीं थी उन चीजों के लिए मैंने आउटसोर्स किया था। तो फिर मतलब गाइस यहाँ पे आई आई ऑलवेज टेल यू इन द सेशंस, आई ऑलवेज टेल दिस पीपल इन द डेमो सेशंस कि हर एक चीज आपको करनी नहीं होती है, यू हैव पीपल अराउंड यू। तो संदीप जी मुझे ये बताओगे कि आप जो कह रहे हो अभी, यू आर सेइंग दैट यू हैव यू यूज्ड टू हैंडल द एसईओ पार्ट, द गूगल एड्स पार्ट फॉर द कंपनी, द सोशल मीडिया पार्ट। लेकिन जरा इन हमारे स्टूडेंट्स को जरा ये बताओगे क्या, क्रिएटिव्स का पार्ट कौन हैंडल करता था क्रिएटिव्स में? जैसे वीडियो एडिटिंग आता है, वीडियो मेकिंग आता है, यूट्यूब के लिए आपको क्रिएटिव्स लगता है, आपको गूगल एड्स के लिए इमेजेस लगती है, आपको मेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए कैरोसेल एड्स लगती है। तो ये क्रिएटिव पार्ट कौन हैंडल करता था वहां पे आपके यहाँ पे? आई यूज टू हैंडल माई ओन. वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का टीम था. तो वो जो इन हाउस उनका जो AMCU रिलेटेड सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर की टीम में एक ग्राफिक डिजाइनर था. हमने उनको वो काम दिया था कि वट एवर द क्रिएटिव्स वी नीड, जैसे कि कोई फेस्टिवल ग्रीटिंग हो गया, उसका कोई क्रिएटिव बनाना है तो मैं उनको बोल देता था. या फिर जो भी वीडियोस हमें आते थे प्रोडक्ट और इवेंट रिलेटेड वीडियोस, तो मैं उनको बोलता था कि यू कैन एडिट इट. नाउ इट डिपेंड्स. आपका जो आपके पास यदि वो ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपर्ट है आपकी टीम में तो ठीक है, नहीं तो यू कैन आउटसोर्स दैट आल्सो फॉर फॉर प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो. तो मैंने वो एक काम आउटसोर्स किया था एजेंसी के थ्रू. नाउ इट So, डिपेंड्स. so my question over here to you is Mr. संदीप कि आपको खुद को क्रिएटिव्स तो नहीं करना पड़ता ना, आपको खुद को इमेज एडिटिंग करना तो नहीं पड़ता है, आपको खुद को वीडियो एडिटिंग तो नहीं करना पड़ता है ना? नहीं नहीं, ये अभी कैसा है कि मैंने वो कुछ कुछ बातें मैंने आउटसोर्सिंग कर लिए थे और कुछ बातें मेरे टीममेट को बता दिया था, राइट, कि आप ये क्रिएट करके दो मुझे ऐसा. ओके। और आपने हम्म. ये कहा कि जैसे आप आउटसोर्स करते थे, तो आउटसोर्स हम्म. करते मतलब आपने जैसे मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम्म. यू आर डूइंग द एसईओ पार्ट इन हाउस, यू आर हैंडलिंग द सोशल मीडिया ऑर्गेनिक पार्ट इन हाउस, और आपने यहाँ पे गूगल एड्स आउटसोर्स कर दिया। तो आपका कहना ये है कि आपके हम्म. पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी जिसकी वजह से आपने किसी एजेंसी को हायर किया था, राइट? एग्जैक्टली, यस. जो हाँ। एक्सपर्टी आपके पास है वो आप यू कैन वर्क योर ओन या फिर आप आउटसोर्स कर सकते हो. स्पेशली पेड कैंपेन जो रहता है या फिर पेड वर्क जो रहता है, हम्म। उसके लिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू हायर एन एजेंसी या फिर कोई एक्सपर्ट हायर करते हैं. क्योंकि अ, बिकॉज पेड कैंपेन्स रहता है तो हम्म, हम्म, हम्म। यदि आपके पास एक्सपर्टी होता है तो आप कर सकते हो खुद, नहीं तो फिर एजेंसी को दे दो. दे विल ऑपरेट देयर ओन, दे विल हैंडल तो एज पर. तो मुझे ये पूछना है कि आप जब एज अ कंपनी, अभी जैसे आप इतने बड़े ब्रांड के साथ आज काम कर रहे हो, यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी है जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, जैसे एक स्टूडेंट का मैंने बीच में एक सुपर सेशन लिया था गाइस, वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम करता है एक्चुअली। और उन्होंने भी बहुत सारा उनका पेड वाला जो कैंपेन था ना, वो एजेंसीज को दिया था। फिर ये एजेंसीज को आप जब देते हो तो ऑन व्हाट बेसिस डू यू शॉर्टलिस्ट दिस एजेंसीज, डू लाइक कैन यू टॉक ऑन दिस कि वह किसी एजेंसी को आपको काम देना है, तो आप कोई भी एजेंसी कौन से बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हो संदीप जी? यस, बेसिकली इन आईटी इंडस्ट्री और BFSI या फिर जो भी इंडस्ट्रीज होता है, वो इंडस्ट्रीज में देर आर सम पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि पॉलिसी चेक, कॉन्फिडेंशियल डेटा जो रहता है वहाँ पे, हाउ मच दैट एजेंसी इज कैपेबल टू स्टोर योर कॉन्फिडेंशियल डेटा. ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. उसके बाद फिर उनका एक्सपर्ट ही देखा जाता है कि आप को विच एक्सपर्टीज यू हैव. जैसे कि किसी का एक्सपर्टी ऑर्गेनिक में होता है, एसीओ, या फिर आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें एक्सपर्टी होता है. किसी का एक्सपर्टी ओनली पेड कैंपेन्स में होता है, जैसे कि गूगल एड्स है वन ऑफ द बेस्ट पेड प्लेटफॉर्म. तो वो पेड गूगल पेड है यदि, तो उनको हम दे देते हैं जैसे. या फिर आपके पास है लिंक्डइन या फिर मेटा है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उनका जो एक्सपर्टी किसी कंपनी के पास या एजेंसी के पास रहता है तो हम उनको देते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट एजेंसी डिड इन द पास्ट, व्हाट दे हैव डिलीवर इन दैट पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्री और BFSI इंडस्ट्री. उसके हिसाब से उनका एजेंसी कैन गेट शॉर्ट लिस्टेड देयर. सो ओके। तो उसके गाइज ऊपर. यहाँ पे लेट मी टेल यू पीपल, हम्म. दिस इज फॉर योर नॉलेज गाइज,
एनडीए करके एक चीज होती है, एनडीए. सो एनडीए बेसिकली इज हम्म, अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. So non-disclosure agreement is something where, let's take an example, if Sandeep is working now, or anyone from you people, like let's take an example, we have Anuradha, we have Anaga over here, we have Bhupesh over here. Let's take an example, Anuga, you are working for ICICI Bank, और आपके ICICI बैंक का काम आप किसी एजेंसी को देना चाहते हो, तो आईसीआईसी बैंक विल मेक श्योर कि उनका कोई भी कस्टमर का डेटा का ईमेल आईडी बोलो, फोन नंबर बोलो, या जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो कहीं पे लीक नहीं होना चाहिए, कहीं पे उस डेटा को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल होना नहीं चाहिए, या फिर वो डेटा किसी दूसरे एजेंसी के पास नहीं होना चाहिए, डेटा को कोई सेल नहीं कर सकता है. ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट सबसे पहले बड़ी कंपनीज करती है, तो इसको एनडीए कहा जाता है. एनडीए स्टैंड फॉर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, which is very much legal, and a company can sue you, company can take a legal action on you अगर आपने ये क्लॉज तोड़ दिया तो. am I correct संदीप जी यहाँ पे? यस ऑल्सो एक 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 चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सर जी, जैसे कि बजट पार्ट होता है किसी कंपनी का, जो भी बजट होता है, वो जो एजेंसी के पास उनका डिटेल्स रहता है कैंपेन्स का, और या फिर एजेंसी में कोई बंदा उनके साथ काम करता है कि ये दिस टीममेट इज वर्किंग फॉर दिस दिस क्लाइंट इन दिस दिस एजेंसी, सो उनके पास जो बजट डिटेल्स होता है, तो दैट इज वेरी मच कॉन्फिडेंशियल. सो यू शुडंट हैव टू शेयर विथ एनीवन अबाउट दिस, बिकॉज यू नो दैट कि एक कहावत है कि दीवार को भी कान होता है, तो यू नो यू शुडंट हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ यू आर वर्किंग विद एनी ऑफ द बिग ब्रांड्स, बिकॉज ये किसी के मतलब ऐसे चिट चैट में यदि डिस्कस हो जाता है या फिर डिस्क्लोज हो जाता है, तो दैट इज वेरी मच कॉन्फिडेंशियल डेटा. एवरीवन लाइक नॉट ओनली यू नो एजेंसी पीपल, बट जो लोग इन हाउस में भी काम करते हैं, आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हो या फिर आपकी कॉर्पोरेट, आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आपको वो डेटा या फिर जो बजट पार्ट है आपकी कैंपेन डिटेल से, यू नीड टू बी वेरी मच यू नो हैव टू very much this is a very secret kind of thing, not secret but you know this is within company only. तो मार्केटिंग रिलेटेड टीम के साथ ही बजट वाला कैंपेन वाला डिस्कशन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ करो मत, मेक दिस हैबिट. हाँ, तो दैट इज यू नो वेरी मच important, because you know what happened in competitive world, a competitor got to know about that this person is working with this company, then you know probably they will try to get some additional data. This is happening in corporate world, so we need to be very confidential about it. Do not share this data. So any doubts so far, guys? So I just want to move next. Yeah, guys, So if you guys, have we any can doubt, you let can me know. ask your questions over here. Priyanka ji, Mhm. Monali ji, Mohammed ji, Prajakta ji. हाँ, we have people Mhm. over here. We have 33, We 34 have a people who full have of joined over here. house. तो Mhm. अगर कोई questions होंगे तो guys you can ask. Sandeep ji, Yes. you can share your screen also. So Yeah, यहाँ पे, it's up now. Sorry, can you just confirm my screen is up now? Can someone confirm? Yes, yes, sir. हाँ हाँ हाँ. Acha, okay, fine, fine. Okay. हम्म. So fine. तो Any doubts so far? तो फिर संदीप जी मुझे ये क्वेश्चन Mhm. पूछना है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जो बहुत जॉब हॉपिंग करते हैं. जॉब हॉपिंग मतलब Mhm. 2 महीने 3 महीने काम करेंगे और इमीडिएटली कहीं पे थोड़ा बहुत सैलरी मिल गया तो जॉब हाँ चेंज हाँ कर हाँ लेंगे. हाँ. हाँ, तो आप बता सकते हो क्या कि आपने ये जो पिछले 10 साल में जो भी आपका जॉब का एक्सपीरियंस रहा है, सो लाइक एज पर योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, लाइक ये कितना हम्म. सही है कितना गलत है जॉब हॉपिंग करना जस्ट सैलरी बढ़ाने के लिए? यू नो बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगा कि सैलरी जो होता है वो आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करता है. यदि आप 3 महीने काम करते हो या फिर 4 महीने का, ये इंडस्ट्री में जाके ये मतलब दिस इज नॉट अ वर्थ एक्चुअली. आप यदि 3-4 महीने में काम करते हो, आपको यदि अच्छा जॉब मिलता है और आप छोड़ देते हो, तो ये आपका सीवी भी खराब होता है प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए तो. एटलीस्ट यू नीड टू स्टे फॉर 1 year, so that if within 1 year you can try multiple things over there. Like if you started working यू नो एज अ फ्रेशर, तो आपने क्या वैल्यू एडिशन दिया है, ओके, आप क्या सीखे हो वहाँ पे उस कंपनी में, या फिर आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया है वो मार्केटिंग टीम के लिए या फिर रेवेन्यू जनरेशन के लिए. तो ये सारा एक्सपीरियंस जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो या फिर जो भी स्ट्रेटेजीज डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप यूज करते हो, वो सारा आपको अगले अगले कंपनी में या फिर वेन एवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द इंटरव्यू, आपको ये दिखाते आना चाहिए. तो इसलिए मैं एक सजेशन दूंगा कि खाली पैसों के लिए स्विच करना विद इन यू नो विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज नॉट वर्थ. ओके, आप कम से कम 1 साल तक किसी एजेंसी या फिर किसी ब्रांड के साथ काम कीजिए. आप अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट कीजिए. आप इंडस्ट्री का ट्रेंड जो रहता है उसको एनालाइज कीजिए.
क्योंकि गूगल एल्गोरिदम जो रहता है एसीओ के लिए, वो एसीओ का एल्गोरिदम हर महीने चेंज होता है। अभी ये वाला आप यदि आज एक एक्सपेरिमेंट करते, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में अगला महीना लग जाता है। तो वो 2-3 एक्सपेरिमेंट करने के बाद यू एबल टू डिलीवर समथिंग, यू एबल टू थिंक लाइक कैसे गूगल या फिर इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। अभी आप 3-4 महीनों में इफ यू प्लानिंग टू स्विच, देन what obvious it won't work for your career growth also and for your knowledge also. So this is my suggestion, for with respect to you have at least you have to stay 1 year. Okay. And talking about my journey, I started, working in a engineering organization, where I spent 1 year there. Okay. I started from the basic. उस टाइम ऐसा डिजिटल मार्केटिंग का कोई मटेरियल्स था ही नहीं। जैसे आज की डेट में आपको सारा जो भी मटेरियल वगैरह है जो मिल जाता है आपको, जैसे कि यू हैव यूट्यूब वीडियो ऑल्सो, देन यू हैव गूगल सर्च ऑल्सो, where if you search for something called SEO related things or Google AdWords related things, you will get to know about few things. So मैंने जैसे 10 साल पहले शुरू किया था, तो इतना मटेरियल नहीं था। So उस टाइम जब हम खुद एक्सपेरिमेंट करते थे, तब हमको पता चलता था कि ये करने के बाद इसका आउटपुट ये आ रहा है, राइट। दिस इज वन थिंग दैट इफ यू इम्प्लीमेंट दिस, आफ्टर दैट यू शुडंट हैव टू इम्प्लीमेंट। मतलब कुछ गलत भी होता है तो हमें पता चल जाता था। आज की डेट में कैसा, व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिस, आपने सर्च किया तो आपको 10-12 स्ट्रेटेजीज आपको वहीं पे मिल जाते हैं। सो यू गाइस, नाउअडेज डिजिटल मार्केटिंग इज क्वाइट फास्टर दैन अर्लियर डेज। तो उस टाइम उतना पेनिट्रेशन भी नहीं था 10 साल पहले। अभी उसका पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गया। आपको मटेरियल्स यू हैव, then you have multiple videos available. Basis on that, you can take corrective decision with respect to strategies. Okay. Yes, Rohit sir. If uh, can I move हाँ towards तो next? या हाँ, तो आपने ये एजेंसी का बता दिया। फिर एजेंसी ये एक इंजीनियरिंग कंपनी थी आप बोल रहे हो, है ना? Yes, yes. हाँ, तो उनके लिए आपको Then आपको हायर किया था, और कुछ काम उन्होंने आउटसोर्स किया था। फिर ये इंजीनियरिंग कंपनी की बात संदीप जी आपने कहाँ पे स्विच किया, मतलब कहाँ पे? I एक पुणे बेस्ड एक रिसर्च कंपनी कॉल मार्केट्स एंड मार्केट रिसर्च, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी देयर। तो ओके। मैंने एज अ वेब मार्केटिंग एनालिस्ट वहाँ पे ज्वाइन किया। हम्म। उसके बाद आई ऑलमोस्ट स्पेंड 5 years विद मार्केट्स एंड मार्केट्स। इट इज इट इज लोकेटेड इन मगरपट्टा सिटी, पुणे। तो वहाँ पे मैंने एज अ वेब मार्केटिंग एनालिस्ट मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे 2 साल के बाद प्रमोशन मिला वहाँ पे। मैं सीनियर वेब मार्केटिंग एनालिस्ट बना, और उसके बाद अगेन आफ्टर 2 years आई गॉट अ प्रमोशन। तो जब मैं वहां से स्विच किया, तो मैं वहाँ पे टीम लीड था। ये तो व्हाट द मैंने जो भी चीजें वहाँ पे की है, जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट प्रमोट करना, उनका लीड जनरेट वगैरह करना। सो आफ्टर दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ टीम लीड देयर। तो वहाँ पे मैंने मुझे एज संदीप जी यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो हाँ गाइस हाँ। लेट मी टेल यू, मार्केट्स एंड मार्केट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया फॉर मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या होता है बेसिकली गाइस? बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत सारे रिपोर्ट्स लगते हैं, फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स, कि मोबाइल इंडस्ट्री कितना बढ़ेगा, फूड इंडस्ट्री में वेजिटेबल इंडस्ट्री कितना बढ़ सकता है, ऑयल इंडस्ट्री में कौन सा अलग अलग ऑयल्स होता है, मिथेन ऑयल कितना बढ़ सकता है। तो ये इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स को रिसर्च करके, पूरा रिसर्च करके उनका टीम रिपोर्ट्स बनाती है, और ये रिपोर्ट्स को वो बेचता है। इसके लिए मार्केट्स एंड मार्केट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज आई थिंक। संदीप, अभी उनका करंट स्ट्रेंथ कितना होगा? 200 300 कितने एम्प्लॉयज होगी, 400 कितना है, एनी आइडिया? डिजिटल मार्केटिंग का टीम तो 200 प्लस ही है उनका। Okay, guys, so you can just imagine हाँ। they have 200 plus हम्म, people working as digital marketing executives, and they're mainly market research companies का मेन काम होता है एसईओ के थ्रू रिपोर्ट्स को रैंक करना, लिंक्डइन के थ्रू हम्म, बड़े बड़े जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको कनेक्ट करना, और वहां से रिपोर्ट्स बेचना। तो गाइस यू कैन हम्म, जस्ट इमेजिन इफ these people have a team of 200 plus, because मुझे याद है संदीप पाटिल के साथ और भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे अमित वेलकर था, चंद्रकांत यस। था, उन्होंने भी ज्वाइन किया था वो कंपनी, और वो अभी भी संदीप जी वहीं पे है काम में, मतलब 11 साल से वहीं पे काम कर रहा है। पैकेज बढ़ गया है गाइस उनका। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फर्क क्या है गाइस। संदीप भी उनके साथ ही काम कर रहा था। आई थिंक ऑल दीस पीपल आर पास आउट ऑफ 2014 बैच, 2014 के बैच के पास आउट हो। तो गाइस इन इसके साथ ही और 3 से 4 स्टूडेंट उसी बैच के थे। एक था अमित वेलकर, एक था चंद्रकांत, तीसरा जो बंदा था मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये विकास।
विकास गादिया। हाँ राइट। तो इन्होंने सबने गाइस वहां पे ज्वाइन किया है, और ये हम्म, सब लोग अभी भी वहीं पे काम कर रहे हैं। और उसमें से मतलब 11 साल वहीं पे काम करे, पैकेज बढ़ गया गाइस, उनका पैकेज बढ़ गया है। हम्म, लेकिन यहाँ पे वो लोग एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, एसईओ 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 और लिंक्डइन। उनको उसके अलावा बाहर जाने के बाद में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल अभी संदीप दे सकते हैं। संदीप जी, आपने टोटल 4 साल काम किया बराबर? यस 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया सर। 5 साल विद मार्केट रिसर्च में काम किया आपने? यस ओके, हाँ। एट डिफरेंट डेजिग्नेशंस, मतलब जैसे ओके। मैंने जो जहाँ पे ज्वाइन किया था एज ए जूनियर हम्म। लेवल, और वन हम्म। ईयर एक्सपीरियंस लेके मैंने ज्वाइन किया था। और जब मैं छोड़ रहा था, मतलब व्हेन आई गॉट प्रमोटेड एज अ टीम लीड, तो उसके हम्म। बाद आई गॉट टू नो दैट कि आई हैव स्पेंड इनफ टाइम, या फिर आई आल्सो अनदर थिंग दैट कि उस वक्त आई गॉट मैरिड एक्चुअली, सो आई हम्म। थॉट टू स्विच एंड गेट मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नो दैट्स। उसके बाद मैंने तो स्विच किया, तो आई हम्म ज्वाइन। हाँ, यस यस सर, तो कंटिन्यू। मुझे ये पूछना था संदीप जी, आपने कहा कि यू आर सेइंग दैट यू हैव स्पेंट 5+ years इन मार्केट रिसर्च यस। कंपनी, सो यू गॉट प्रमोटेड एज अ टीम लीडर। तो फिर ये जरा आप यहाँ पे गाइस, जब इंटरनली आप प्रमोट होते हो, जैसे हो सकता है कंपनी किसी बाहर के बंदे को भी हायर कर सकता था एज अ टीम लीडर, लेकिन उन्होंने कंपनी में काम करने वाले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से किसी को हायर किया। इसे कहते हैं इंटरनल जॉब पोस्टिंग, आईजेपी कहते हैं गाइस, इसे क्या हाँ जी कहते हैं? जी। आईजेपी। आईजीपी स्टैंड्स फॉर इंटरनल जॉब पोस्टिंग, जहां पे आप लोगों को जब कंपनी में कोई सीनियर पोजीशन आती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने ही जो एम्प्लॉयज है उनमें जो कैलिबर लगता है उनको, जिसमें कैलिबर है, तो उनका राउंड लेती है। एक फॉर्म आता है कंपनी की साइड से, एक ओपनिंग आता है कि हमारे पास ये ओपनिंग है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी एलिजिबिलिटी होती है, कम से कम आपने 2 साल कंपनी में टाइम स्पेंड किया होना चाहिए, आप लोग कभी मतलब जैसे वार्निंग इस पे नहीं जाना चाहिए, आप लोग कभी इस पे नहीं जाना, ये सब कुछ क्राइटेरिया होती है। और उसके बाद में अप्लाई किया जाता है, और अप्लाई करने के बाद गाइज यहाँ पे इंटरव्यूज दिया जाता है जो लोगों ने अप्लाई किया, और उसमें जिनमें उनको कैलिबर लगता है उस बंदे को प्रमोट किया जाता है। तो संदीप जी, मुझे ये बताओगे क्या आपकी ये सब जो यस। आपने अप्लाई किया था और आपको टीम लीडर बनाया गया मार्केट्स एंड मार्केट्स में, तो मार्केट्स एंड मार्केट्स में ये जो सिलेक्शन करता है टीम लीडर्स के लिए, पोजीशन के लिए, हायर पोजीशन के लिए, तो एग्जैक्टली क्या देखा जाता है? जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो जॉब ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ग्रोथ क्या है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो कौन से बेसिस पे उन्होंने आपको एज ए टीम लीडर सिलेक्ट किया था? राइट। एक और बात तो यहाँ पे बोलना चाहूंगा ये सर। भी हाँ, बताइए यस कि सर। आपका पहले जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था एज अ डिजिटल मार्केटिंग सीनियर, और जब आप टीम लीडर बन गए तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनी? आप तभी भी एग्जीक्यूशन में थे या फिर आप सिर्फ टीम हैंडल करते थे क्लाइंट के साथ ये दोनों भी बताइए ना डिफरेंस। यस। सो फर्स्टली विल टेल यू सर कि जो भी आपका, मैंने पहले भी कहा है कि आपका ग्रोथ जो रहता है वो आपके नॉलेज पे, आपकी कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड होता है। इफ यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, देन ऑफ कोर्स कंपनी विल रिकॉग्नाइज यू। ये फर्स्ट थिंग था। जैसे मैंने जूनियर लेवल पे या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम किया, तो एग्जीक्यूशन भी किया, अच्छे से आउटपुट भी दिया। और जैसे जैसे विद इन कंपनी कुछ लोग जब छोड़ के जाते हैं, तब उनका पोजीशन भी वैकेंस होता है, वैकेंसीज आता है। तो उस हिसाब से और मेरे काम के हिसाब से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। और जब मैं टीम लीड था, तो आई यूज टू मैनेज ओनली टीम। आई नीड टू वर्क ऑन ओनली एनालिटिक्स पार्ट, कितना लीड आया है या फिर कितना प्रमोशंस हुआ है, क्या क्या हमें करना चाहिए। पूरा टीम का जो मेरे मेरे साथ चार बंदे, चार टीममेट्स काम करते थे वहाँ पे, व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ टीम लीड। तो उस टाइम जब मैं काम कर रहा था, तो रिपोर्ट असाइनिंग करना, राइट, टास्क असाइनिंग करना कि यू नीड टू डू दिस थिंग्स, एंड उनको मॉनिटर करना, उनको गाइड करना बेसिकली, कि ये आप ऐसा करना चाहिए, ये आप इस टाइप से प्रमोशन करोगे तो आपका लीड बढ़ेगा। जब एक देर इज अ वन लाइन विल से यू, इफ यू कैन डू इट, यू कैन हैव इट डन। यदि आपने वो किया है, ये वही वो काम आप दूसरों से करवा भी ले सकते हो। तो ये मेरे साथ एग्जैक्टली वो हुआ वहां पे। मैंने यदि इफ आई हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, या फिर मुझे वो फंडे पता चल गए कि कैसे प्रमोट करते हैं, तो मैंने वो सेम काम मेरे टीममेट से करवा के लिया। And that's the reason I got an opportunity, and I spent more than 5 years there. uh, और एक ही कंपनी में 2 बार प्रमोशन मिलना विद इन 5 years, दैट इज अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग फॉर मी। इट completely depend upon your contribution also,
whenever you got an opportunity within a team, you have to accept it. You have to accept the challenges. आपको ऐसा नहीं कि यदि मैं एक ही लेवल पे काम कर रहा हूँ फिर मेरा काम बढ़ जाएगा या फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, कैसे हैंडल कर पाऊंगा। तो ये बात आपको, ये जो रिस्क टेकिंग फैक्टर रहता है, यू नीड टू टेक दिस साइड, राइट? बिकॉज जैसे डेजिग्नेशन बढ़ता है वैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ता है। आपको उतना काम करवा के भी लेना पड़ता है, आपको भी उतना काम करना पड़ता है, और यू नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आप खाली आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, आपकी टीम का भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। सो दिस इज द थिंग। Uh, हाँ। Yeah, thank you so much, Sandeep ji. Sandeep हम्म, ji, I want to ask you some more things about this. Now, market research हम्म, का जो ये company markets and markets, this is for our students हम्म, guys because संदीप जी अभी बहुत सारे students होते हैं हमारे जो बैच पास आउट होते हैं और हम्म, वो जॉब्स देखते हैं। तो हम्म, मार्केट रिसर्च का जो ये आपका कंपनी था, इनका टारगेटेड कौन सा कंट्री था? वो कौन से कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ा रहे थे? और आपको शिफ्ट टाइमिंग्स के बारे में बताने आएगा क्या? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको सिर्फ डे शिफ्ट में काम मिलेगा, बहुत कंफर्ट जोन में काम हम्म। मिलेगा। तो जरा इस पे भी बात करोगे क्या कि मार्केट्स एंड मार्केट्स कौन सी अलग अलग शिफ्ट टाइमिंग्स में काम करता था? Will tell you one thing, sir. Here, not only markets are not, but there are rest of the organizations are also there in in research industry. तो मैं ओवरऑल आपको रिसर्च इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ, so that your our participants will get to know about entire industry knowledge, not only about one company. So my perspective is that to sharing them a industry knowledge related. So कैसा है कि रिसर्च इंडस्ट्री में बेसिकली you need to target North American and European countries, major markets. मेजर मार्केट्स मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स जहाँ पे रहते हैं, आपको वो लोकेशंस या फिर वो कंट्रीज आपको टारगेट करना रहता है। जैसे कि विल गिव यू वन एग्जांपल, कि जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया। तो जॉनसन एंड जॉनसन के जो लोग रहते हैं, वो लोग दे विल लुकिंग आउट फॉर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे अपकमिंग ट्रेंड्स क्या है। तो उन लोगों को कैसे रीच आउट किया जाए, तो वी नीड टू टारगेट नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज लाइक जॉनसन एंड जॉनसन का हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए में है। तो हमको यूएसए में जो भी पेड प्रेस रिलीजेस, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखो थर्ड पॉइंट आप देखोगे तो पेड प्रेस रिलीजेस आर इम्पोर्टेंट फॉर बी टू बी इंडस्ट्री। सो आपके जो नॉर्थ अमेरिकन रीजन में जो भी पेड प्रेस रिलीज वेबसाइट्स रैंक करते, तो आपको वहाँ पे वो चूज करना है, right? Then and then, you will get to reach out to your target audience. Basically, not only for, I'm just giving you example of North America, but we have a Europe region also. We have a Middle East region, Gulf related region में यदि कोई ऑयल एंड गैस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको गल्फ रीजन में आपका जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ पे करना चाहिए। सेकंड थिंग, विल टॉक अबाउट द शिफ्ट टाइमिंग्स नाउ। everyone is preferring Indian ship, but it depends। if यदि कंपनी का कोई रिक्वायरमेंट होता है, तो आप शिप में भी आपको वो काम अलोकेट कर सकते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम, ड्यूरिंग सेकंड शिप मतलब क्या होता है, कि जो एक 2:30-3 बजे के आसपास शुरू होता है उसको सेकंड शिप बोलते हैं। स्पेशली दैट इज टारगेटिंग फॉर यूरोपियन कंट्रीज और यूके रीजन जो रहता है उसके लिए टारगेट किया जाता है सेकंड शिप। तो सेकंड शिफ्ट में आपको 2 या 2:30 बजे काम आपका शुरू होता है, नियर बाय 9:30 to 10 तक आप काम कर सकते हैं। तो उस टाइम में जो भी लोग वहाँ पे एक्टिव होते हैं यूरोप रीजन में, तो आप यू कैन टारगेट दोज पीपल। ओके। Talking about the North American ship, it's a later evening ship. It starts from nearby, 6:30 or 7:30, and it till 1 or 2 p.m. 2 a.m. in morning. That ship goes. So now it depends upon organization to organization where they want to, if they want to work you for US ship, then of course you need to work for night, and it depends upon, I don't want to comment now. If you join a company, then you can discuss within them, but you know that timings will give you more output, because that when you are working, when you are submitting something, so that time if that people are live from their end, so that time you will able to get ranked, and that will help you to generate your leads, or whatever you can say, inquiries and all. Your brand or your work will get visible at that time.
So यस गाइस, proceed with our concepts. हाँ, तो मुझे ये बोलना है गाइस, व्हाट संदीप इज ट्राइंग टू से इज लाइक सिंपल. ही वाज सेइंग दैट इफ यू आर वर्किंग फॉर यूरोपियन और यूके क्लाइंट यू नीड टू लॉग इन एट 2:30. अभी यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूके यूरोपियन कंट्रीज हमारे से नॉर्मली 4.5 घंटे पीछे है. तो जब हमारे यहाँ पे 2 बजते हैं तो उनके यहाँ पे सुबह के 10 बज जाते हैं. और यूएस के लिए अगर आप देखोगे तो यूएस इज 12-12.5 आवर्स बिहाइंड द. तो हम लोग जब शाम को 7-8 बजे काम शुरू करेंगे, उनके यहाँ पे सुबह 8:30-9 बज जाता है. तो बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. व्हेन आई वाज वर्किंग विद आईबीएम, व्हेन आई वाज वर्किंग विद क्लैरियन, विप्रो टेक्नोलॉजीज में मैं जब काम करता था गाइस, तो विप्रो वाज वर्किंग फॉर ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट. तो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट हमारे से 4.5 घंटे यहाँ पे पीछे है. तो 4.5 नहीं, करीब करीब 6-7 घंटे पीछे. तो हमारा शिफ्ट सुबह 5 बजे होता था. सुबह 5 बजे हम लॉग इन करते थे. सो गाइस, इफ यू are planning to work with big brands like Wipro, Accenture, all these companies, ये कंपनीज के मैक्सिमम जो क्लाइंट्स होते हैं ना, ये बाहर के क्लाइंट्स होते हैं. उनके वो डोमेस्टिक क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करते. मैक्सिमम बड़े बड़े बाहर के क्लाइंट्स होते हैं. जैसे XYZ, जैसे एक कंपनी है जिसके साथ मैं काम करता था, उनका क्लाइंट फिलिप्स जो है ना, फिलिप्स कंपनी वो था. उनका क्लाइंट एप्पल था. तो यहाँ पे आप लोगों को उस शिफ्ट में काम करने को जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बहुत बार क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग जब रहेंगे प्रेजेंट तो आपका टीम होना चाहिए. कभी मीटिंग्स होता है, कभी कॉल लेना होता है, कभी कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी होती है. तो ये चीजों के लिए दोस पीपल एक्सपेक्ट यू टू वर्क इन दोस टाइम्स. इज इट ओके? एम आई राइट, संदीप जी? Yes, yes, exactly, sir. For a youngster also or the one who wants to join as a digital marketer, so you have to be ready. If company needs you to work in the second shift or night shift or UK shift, you have to be ready because that is not as per company's requirement, but that is as per our client's requirement, right? So we need to fulfill that requirement. So that is the thing. So any doubts so far, guys? There are 29 participants. I just want to hear some queries and questions from your end. I would like to answer it. So I don't want to यस make गाइस. this session as a one-way session, huh? Please या interact so that. अनुराधा जी, बालाजी, दीपाली, अनगा, हेमंत जी, कुणाल जी, माधुरी जी, मनीष जी, जितने भी लोग हैं, साक्षी, सीमा, श्रुतिका, प्रियंका, त्रिशला, पूछिए पूछिए. आपके क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो गाइस, तो ही हमारा सेशन इंटरेक्टिव बनेगा. Right. तो कोई क्वेश्चन? Mhm. त्रिशला, मिदुल, स्वप्नजा, सुवर्णा जी, नो क्वेश्चन टिल नाउ? ठीक है. संदीप जी, अभी यहाँ पे आपने 5 साल काम किया और उसके बाद में फिर Right. आपने टोटल पहले 1 साल और उसके बाद ये 5 साल, 6 साल का तो आपका एक्सपीरियंस Yes. हो गया. उसके बाद आपने ये बड़ा आईटी कंपनी ज्वाइन कर लिया क्या? नहीं, आफ्टर दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी विथ एवेंटिस रेक्टेक. ये जो ओके. पुणे में एक SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर है उनका, वो कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला. उनका कंप्लायंस एंड CS रिलेटेड सॉफ्टवेयर है. तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन IT इंडस्ट्री. सो आफ्टर वर्किंग इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ IT इंडस्ट्री. सो ये जो एवेंटिस रेक्टेक जो कंपनी है, वहाँ पे मैंने I started as an assistant manager. Okay. Basis on my, work, whatever I did earlier. उनका कैसे था? अवेंटिस में भी बोलता हूँ मैं आपको. अवेंटिस का पूरा काम उन्होंने आउटसोर्स किया था, पूरा डिजिटल मार्केटिंग वर्क. बट दे फाउंड दैट कि उनका काम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वी हैव अ एक्सपर्टीज ऑफ मेंटेनिंग वेबसाइट और ओन, creating graphics or own, why don't we hire a digital marketing person? So they have decided and I got this opportunity because I spent a good amount of industry experience. मैंने अच्छे से बाकी के कंपनीज में काम किया था, तो मुझे उस लेवल का ऑर्गेनिक और पेड का एक्सपीरियंस था. तो उन्होंने मुझे हायर किया. और जब मैंने ज्वाइन किया अवेंटिस रेक्टेक कंपनी, तो वहाँ का जो विजिटर्स था, इवन आई अपलोडेड इट ऑन लिंक्डइन, इट वाज नियर बाय, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट वो 100 टाइम्स मैंने ग्रो किया था वहाँ का विजिटर्स ऑन रेगुलर बेसिस. या गाइस, संदीप जी ने जो पॉइंट अभी बोला है ना, बहुत सारे एजेंसीज में मैंने देखा है हमारे स्टूडेंट्स को. मतलब इन जनरल आपको बताना चाहता हूँ, अभी बहुत बार ऐसे होता है कि देयर आर कंपनीज जिन्होंने काम आउटसोर्स करके रखा.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम्म पे कोई भी आप में से कोई भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे अनुराधा जी, अनुराधा जी हम्म आपने किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, और उनके जो भी आईटी प्रोडक्ट्स हैं, फिर वो सैप हो सकता है, उनका कोई भी दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है, कोई डेवलपमेंट का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई ऐप डेवलपमेंट का प्रोडक्ट हो सकता है, उन सारे प्रोडक्ट्स का सेल्स बढ़ाने के लिए उन्होंने ये अपने डिजिटल मार्केटिंग का काम किसी एजेंसी को देके रखा है गाइस। और उन एजेंसीज को देने के बाद उन्होंने उनको ऐसे रियलाइज होगा कि चलो हम लोग भी किसी बंदे को इन हाउस हायर कर लेते, ताकि वो सब हम्म ये सारी चीजों को मॉनिटर से कर सके। और जब उस बंदे को हायर कर लिया, अनुराधा को हायर कर लिया, और कंपनी ने अनुराधा को हायर करने के बाद में उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अनुराधा इज वेरी गुड विद एसईओ, शी कैन वेरी मच इजीली हैंडल गूगल एड्स, उसको इन सारे प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो गाइस द कंपनीज आर लुकिंग फॉर कॉस्ट कटिंग। बहुत सारी कंपनीज कैसे अपना पैसा बचेगा, ये भी इस चीजों पे भी जोर देती है, इस चीजों पे भी ध्यान देती है। अगर कल लगता है उन्हें अनुराधा ये सारी चीजें हैंडल कर पा रही है, तो बहुत सारी कंपनीज एजेंसी से काम निकाल के लेके इन हाउस ही शुरू कर देते हैं। ऐसे भी होता है। अभी रिसेंटली हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ऐसे ही हुआ था। उन्होंने सारा काम किसी को आउटसोर्स किया था, और उनको हायर करने के बाद 1-2 महीने में कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि अरे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों बंदों को पता है। तो उन्होंने वो सारा काम एजेंसी से ले लिया, क्योंकि एजेंसीज बहुत सारा रिटेनर फीस लेती है आपसे हर महीना, बहुत सारा पैसा लेती है। वो हम्म कॉस्ट कंपनी का आप बचा सकते हो। तो ये एक पॉइंट था जो अभी संदीप जी बोल रहे थे, उस पे से मुझे याद आया और मैंने यहाँ पे बता दिया। राइट एग्जैक्टली सर, इन एडिशन टू दिस मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो भी एक्सपर्टीज होता है, हम आउटसोर्स क्यों करते हैं, या फिर आउटसोर्सिंग जो काम है वो इन हाउस क्यों लेते हैं, कि कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर एक्सपर्टीज। अभी एवेंटिस कंपनी को, उनको जैसे रिक्वायरमेंट था डिजिटल मार्केटिंग का, उनको वैसे एक्सपर्ट मिल गया। सो यू नो दे हैव स्टॉप्ड हायरिंग दैट एजेंसी, दे हैव स्टॉप वर्किंग विद द एजेंसी। इन हाउस से उन्होंने खुद का सेटअप किया। मैं ज्वाइन होने के बाद मैंने आई हैव हायर्ड वन ईमेल मार्केटर, बिकॉज वहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा काम था। जो भी लीगल अपडेट उस कंपनी के थे, वो लीगल अपडेट्स, we need to create that emailers and we need to share it with the subscribers। तो ये बहुत बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट काम था वहाँ पे। तो when I joined that organization, I created my own team। राइट, अर्लियर ग्राफिक डिजाइनर वहाँ पे एक टीममेट थी ऑलरेडी। तो उनको खाली डिजिटल मार्केटिंग का काम हमने, क्रिएटिंग बैनर्स, क्रिएटिंग फ्लायर्स फॉर सोशल मीडिया, क्रिएटिंग टेम्पलेट फॉर ईमेल मार्केटिंग। सो एवरीथिंग वी हैव स्टार्टेड वर्किंग इन हाउस ओनली। सो ईमेल मार्केटिंग का बंदा मैंने लिया, फिर डिजिटल मार्केटिंग की जो ग्राफिक डिजाइनिंग थी वो हमने स्टार्ट किया इन हाउस। और उसके बाद एडिशनली भी ग्राफिक डिजाइनर हमने लिया, क्योंकि जो काम था वो थोड़ा इट वाज एट ए ह्यूज स्केल। तो वो हमारा एक 3 लोगों का टीम वहाँ पे हुआ था। आई वाज लीडिंग दैट टीम। 3 लोग मुझे वहाँ पे रिपोर्ट करते थे। और वो रिपोर्ट करने के बाद वी गॉट टू नो अबाउट इट कि इट्स गोइंग वेल। तो ऑर्गेनिक तो मैंने अच्छे से सेट किया, और पेड कैंपेन्स भी वहाँ पे हमने शुरू किए थे। तो पेड कैंपेन मतलब कैसा, कि जैसे आपका गूगल एड्स हो गया या फिर फेसबुक हो गया, वो भी हमने वहाँ पे शुरू किया था। और दैट हैज हेल्प अ लॉट टू जनरेट इंक्वायरीज। अभी आपका जो भी आउटपुट रहता है, वो आउटपुट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट या फिर बजटिंग प्लान होता है। तो वी हैव डिड अ इनफ रिसर्च, वी हैव गॉट रिलेवेंट इंक्वायरीज, उससे कन्वर्जन भी हुआ। उसके हिसाब से हमने बजट वगैरह जो भी था वो प्लानिंग किया। So that was about my third organization, that is Avantis RegTech. So Avantis RegTech was in IT industry. It was a SaaS-based product company. The target audience was India. So we'll tell you the flow, guys. Engineering industry I started. The audience, target audience was India, right? Then I started working with markets and market. The audience was globe, entire globe, USA, Europe, and all. I started with Indian audience, that is with Avantis RegTech। तो वहाँ पे जो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, सीए के लिए, या फिर जो भी कंप्लायंसेस सीएफओ वगैरह होते हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर लगता था, तो वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उनका था। तो उसके लिए हमें टारगेट ऑडियंस वाज इंडिया ओनली। तो इंडिया, then global audience, again India, and then again I started working with TCS. So again I'm working for global audience. So that is a step by step, uh, I would say India, then globe, again India, and then globe. This is a way is going on as of now. हाँ Any तो doubts, फिर sir? संदीप जी,
संदीप जी, अभी हाँ ये हाँ। बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो इतना बड़ा आईटी कंपनी के साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हो, हम्म यहाँ पे हम्म आपका पूरा जर्नी बताइए जरा। मतलब आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको राइट। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इतने बड़ी कंपनी में, क्या चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता है, आपका टाइम का बेसिकली टाइमिंग्स क्या होता है, आपका रिपोर्टिंग कैसे होता है, आप यहाँ पे राइट। आपके साथ कौन सी टीम्स है जो आपके साथ काम करती हैं, हाँ कितने लोग हैं आपकी टीम में, आपके साथ बाकी के जो सब जैसे डेवलपमेंट का टीम बोलो, क्रिएटिव्स का टीम बोलो, ये कौन कौन है, कि जरा काम का जरा तरीका बता सकते हो आप यहाँ पे पूरा। राइट। सो मैं बेसिकली एक थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ सर, कि कैसा है कि मैं टीसीएस में इन हाउस काम करता हूँ। इन हाउस मतलब जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वी आर प्रमोटिंग और ओन। सो आईटी इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि इट डिपेंड्स। कुछ चीज़ों के लिए एजेंसी हायर करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए इफ यू हैव अ एक्सपर्टी, वो एक्सपर्टी के लिए आपको खुद काम करना होता है। तो नाउ आई विल टॉक ओवरऑल अबाउट द आईटी इंडस्ट्री, नॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज जो ट्रेंड हमें आईटी इंडस्ट्री में या फिर जो भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में फॉलो करना पड़ता है, वी नीड टू फॉलो एंड वी नीड टू डिस्कस अकॉर्डिंगली। एज राइटली पॉइंटेड आउट रोहित सर, की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। जैसे कि कोई आईटी कंपनी होता है, तो आईटी कंपनी बेसिकली यू नीड टू बी टॉप ऑन योर वेबसाइट। मतलब आपका जो भी वेबसाइट होता है, तो ऑर्गेनिकली आपको at first level you need to get rank amongst your IT clients, right? IT competition में रहता है। IT industry is a huge industry where you need to be at top of everywhere, right? So organic भी काम होता है वहाँ पे, paid related भी काम होता है। paid means what you're, basically IT industry में LinkedIn and LinkedIn is one of the best platform for LinkedIn paid ads are basically help you to target B2B audience as a अर्लियर मेंशन। देखो मेरे स्लाइड में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है थर्ड पॉइंट की, बी टू बी इंडस्ट्री में यदि आप जाते हो, तो लिंक्डइन एंड गूगल एज वेल एज प्रोग्रामेटिक प्लेसमेंट्स जो रहता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेसिकली आईटी इंडस्ट्री में लिंक्डइन पेड रिलेटेड काम रहता है। यस यस सर। संदीप जी, मुझे कुछ चीजें हाँ इन लोगों को एक्सप्लेन करनी है गाइस। जैसे हाँ। इंडिया में जो आईटी कंपनीज है, इट कैन बी विप्रो, इट कैन बी टीसीएस, इट कैन बी एसेंचर, इट कैन बी कॉग्निजेंट, इट कैन बी एचपी, इट कैन बी any company. There are so many companies in India which are which are doing very much good in this IT sector. So guys, जैसे यहाँ पे संदीप जी ने बोला कि वी नीड टू बी एट द टॉप ऑन गूगल सर्च। अभी एक एग्जांपल मैं आपको एसईओ का यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारी बाहर के जो लोग होते हैं, जैसे लोग जो यूएस में बैठा है, यूके में बैठा है, यूरोपियन कंट्रीज में बैठा है, गल्फ कंट्रीज में बैठा है, उनको अगर अपना कुछ काम किसी बड़े कंपनी को देना है तो वो गूगल पे जाके सर्च कर सकता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने सर्च कर लिया गूगल पे जाके, टॉप आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज इन इंडिया। मतलब कोई बंदा यूएस में बैठा है, यूएस में यहाँ पे कोई बैंक है, अमेरिकन बैंक ऑफ अमेरिका है, और बैंक ऑफ अमेरिका को अपना जो भी सिस्टम है इंटरनल, जहां पे हम लोग बैंक्स में जाते बोलते हैं मेरा अकाउंट नंबर ये है, वो इमीडिएटली ठक 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 एंटर करता है सॉफ्टवेयर पे और इमीडिएटली आपको बैलेंस बता देता है। तो ऐसे मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका का खुद का पूरा आईटी का एक सॉफ्टवेयर है जो अपने बैंकिंग के लिए यूज करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए या उसको और डेवलप करने के लिए वो क्या करता है, वहां से ज्यादा इंडियन कंपनीज बोलो, फिलीपींस बोलो, हाँ ये जो थाई कंट्रीज है, ये साइड में कंपनीज देखता है कि बाबा हमारा काम कैसे सस्ते में होगा। तो मान लीजिए वहां पे बैठ के उन्होंने सर्च कर लिया, गूगल पे जाके सर्च करते हैं वो लोग यहाँ पे गूगल पे कि टॉप आईटी कंपनीज इन इंडिया गूगल पे। और अभी भी आप लोग अगर चाहिए होगा तो आप लोग अभी भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो टॉप आईटी कंपनीज इन इंडिया, और आपको सारे दिग्गज जो नाम है, डब्ल्यूएनएस, आईबीएम, कॉग्निजेंट, पर्सिस्टेंट, विप्रो, एसेंचर, ये नाम दिखेंगे। मतलब गाइस जब उनका वेबसाइट रैंक हो रहा है गूगल के टॉप में, एक तो ब्रांड ऑथोरिटी भी होता है, प्लस यहाँ पे एसईओ करके, मतलब वो एसईओ को एफर्ट डाल रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि उनके कस्टमर जो है वो वहां से सर्च करेंगे। अब वहां पे मान लीजिए अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप है, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, उनको अपना पूरा सॉफ्टवेयर जो है या सिक्योरिटी सिस्टम जो है, साइबर सिक्योरिटी अटैक नहीं होने चाहिए, ये सब आउटसोर्स करना है। तब जाके ये हमारी कंपनी जो है ना, ये काम सब लेती है वहां से और इंडिया में बैठ के उनको कम लेबर में काम करके देती है। नॉर्मली वहां से कंपनी ना यहाँ पे एक एम्प्लॉय को पर सीट पे पर आर्ली बेसिस पे पैसा देता है, एक आर का $70, $100, $150, और फिर यहाँ पे कंपनी बेसिकली ये सब बिलिंग करती कि हाँ इस एम्प्लॉय का $3,000 का बिल हो गया, इस एम्प्लॉय का $5,000 का बिल हो गया, और फिर उसमें से एम्प्लॉय को पगार देके जो बचता है वो कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू होता है। ये जस्ट मैं इन जनरल आपको सारे आईटी कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ। तो एम आई करेक्ट संदीप जी ऑन द साइंस
if I'm यस एग्जैक्टली यस सर, यही होता है। और उसके हिसाब से फिर जो भी आईटी इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग डे बाय डे, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड दैट कि if you want to gain more and more clients, you have to get ranked on not only on Google but everywhere. You need yeah. to increase your presence, digital presence across all platforms. You need to increase your digital footprints, and that will help you to uh, that can be done through hiring new talents. Okay, basis on that, every candidate will contribute. They will implement their knowledge, and whatever they do have their ideas. Okay, basis on that, every that kind of digital marketing teamwork can be get done in IT industry. So, any doubts so far, guys? I'm seeing that this audience is quite silent audience. हाँ I कोई thought क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा everything है। is पार्श्व जी, everything अनघा जी, everything बालाजी, is हेमंत जी, कुणाल जी, माधुरी जी, प्रियंका जी, क्वेश्चन पूछे ना, कोई क्वेश्चन नहीं गाइस आप लोगों का। अभी hmm, मैं भी ना संदीप जी, आई वाज वर्किंग हाँ, विद आईसीआईसी बैंक, इट वाज इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम हम्म, नाउ, इट वाज इन 2004 गाइस, व्हेन आई वाज वर्किंग विद आईसीआईसी बैंक। तो मैं बैंक के हम्म, साथ जब काम करता था तो आई वाज इन द टेक्निकल टीम। सो गाइस यहाँ पे ना बहुत बार हमारे टेक्निकल टीम की मीटिंग्स ना इन्फोसिस के साथ होती। तो मैंने एक बार पूछा था ये क्यों इन्फोसिस के साथ बार बार मीटिंग्स होती, क्या इतना होता है कि इन्फोसिस के लोग बार बार आता है सिस्टम चेक करता है। तब मुझे समझ में आ गया था कि इन्फोसिस जो आईसीआईसी बैंक का जो फिनेकल कोर का जो सॉफ्टवेयर हम लोग जो यूज करते थे बैंक्स में, कोई बंदा आता है बैलेंस पूछता है, मेरे अकाउंट को चेक लग गया क्या, हाँ मेरा सीसी में कितना बैलेंस है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ना, वो पूरा डेवलप किया था किसने, इन्फोसिस ने डेवलप किया था। हाँ अभी गवर्नमेंट ने मान लीजिए नया कोई कंप्लायंस लाया, जैसे जीएसटी लाया, वैट लाया, या फिर ये प्रोडक्ट्स पे ये कम कर दो, बैंक इंडस्ट्री में उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रेट कम कर दो, बढ़ा दो, फिर ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। हाँ तो ही तो एक्यूरेसी आएगी ना। फिर यहाँ पे इन्फोसिस पिक्चर में क्यों आ रहा था, बिकॉज इन्फोसिस ने सारा काम आईसीआईसी बैंक का जो ये काम था आईटी का काम, वो पूरा काम आईसीआईसी बैंक ने किसको आउटसोर्स किया था, इन्फोसिस को किया था। ऐसे ही ये जो बड़ी कंपनीज है इंडिया की टॉप 10, 20, 30, these companies are heavily depend on all these फॉरेन कंपनीज। हाँ जैसे यूएस, यूके, कनाडा, मैंने बात किया गल्फ कंट्रीज, यहाँ पे इन कंपनीज को जो भी लगता है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, हाँ यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री हो गया। जैसे अभी बीच में आप लोगों को पता होगा कि बीच में एयरलाइंस का जैसे अभी इंडिगो का जैसे हुआ है, उसके Indigo, पहले 2 महीने पहले बहुत बड़ा ग्लिच आया था और सारी एयरलाइंस वगैरह ना रुक गई थी। तब लोगों को समझ में आ गया था कि बहुत सारे एयरलाइंस के जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, ये जो एयरलाइंस को ट्रैक किया जाता है, ये जो रडार चलते हैं, ये सारा काम बहुत ज्यादा मेजर किसके पास था, माइक्रोसॉफ्ट के साथ था। और माइक्रोसॉफ्ट का कुछ इशू हुआ था डेटा हम्म, सर्वर्स का, जिसकी वजह से सारे फ्लाइट्स, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं ये फ्लाइट में ये ट्रैवल करो, इसका सारा काम माइक्रोसॉफ्ट कर रहा हम्म, है। तो ये जब आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, तब आपको एक बड़े लेवल का पिक्चर समझ में आता है, अरे अपना क्लाइंट इतना बड़ा कंपनी है क्या, अपना क्लाइंट ये है क्या। तो गाइस ऐसे ये सारी चीजें चलती है, जिसको आप लोगों को ना छोटे एजेंसीज में ये एक्सपीरियंस नहीं आएगा। छोटे एजेंसीज में आपको हाँ चीजें अलग अलग सीखने मिलेगी, लेकिन ये बड़े हम्म, लेवल का जो गेम होता है बी2बी का। अब संदीप जी बार हम्म, बार लिंक्डइन क्यों बोल रही है यहाँ पे, क्योंकि लिंक्डइन पे गाइस डिसीजन मेकर्स, मतलब जो बंदा डिसीजन ले सकता है, वैसे लोग आपको सारे लिंक्डइन पे मिलेंगे। तो वहां पे ये लोग क्यों अपने प्रोडक्ट्स को पिच करें, क्योंकि वहां पे डिसीजन मेकर्स मिलेंगे। गूगल सर्च पे कोई बंदा आता है, खुद होके सर्च कर रहा है, उसका नीड है गाइस, वो खुद होके सर्च कर रहा है, मतलब उसका इंटेंशन यहाँ पे बाय करने का है, वहां से कन्वर्जन सबसे ज्यादा मिल सकता है, उसीलिए वो गूगल सर्च पे फोकस कर रहा है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स को वो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है वहां पे उनका क्राउड ही नहीं है। फेसबुक इंस्टा का Audience, क्राउड कौन है, पूरा जेंजी क्राउड है, पूरा यंग क्राउड है। तो वहां पे जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस करते हैं, लाइफस्टाइल बोलो, हाँ यहाँ पे आपका फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री बोलो, ऐसी चीजें वहां पे चलेगी। अब ये जो जिस e-commerce आईटी, related. यस हाँ, हम्म, ये जो आईटी हम्म, कंपनी के साथ काम करे ना, अभी इनका कहना है ऐसे कि ये अपने कंपनी में जो काम करता है, वो सिर्फ उस आईटी कंपनी की नहीं, उनके ग्रुप की और भी बहुत सारी कंपनीज है। जैसे रिलायंस का रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस का रिलायंस जियो है, रिलायंस का यहाँ पे रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस पावर है, मतलब वो एक रिलायंस का आईटी कंपनी उनके बाकी के कंपनीज का भी डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है ना, वो आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही कंपनी को यहाँ पे वो काम दे दिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, एम आई करेक्ट संदीप जी। yes, within a team only. Okay, they have not hired any agency. They have created, they have built their own team,
and they are asking their own team to get the things done, so that ये बिग बिग ब्रांड्स में या फिर टॉप आईटी जायंट्स कंपनीज में क्या होता है, या फिर कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि यू नो जो भी डिजिटल मार्केटिंग का टीम होता है, दे आर वर्किंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। जैसे कि किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वी नीड टू प्रमोट दिस, और वी नीड टू गेन दिस काइंड ऑफ रेवेन्यू, हमको रेवेन्यू जनरेट करता है, या फिर कोई भी फील्ड हो उसमें हमें टॉप करना है। ओके, तो उसके लिए जो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका गोल है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ, सेल्स टीम के साथ, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वो सारा लोगों के साथ जो भी डिसाइड होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग टीम हैव टू वर्क विद दैट ऑब्जेक्टिव, right? So it's called as a management by objective, MBO. It's a very much good concept in MBA marketing. If anyone from MBA marketing background or MBA background, they will got to know about this management by objective. So that will help you to work with the company objective. और ये कैसा है कि बहुत सारी कंपनी ने खुद का डिजिटल मार्केटिंग टीम अभी खड़ा कर लिया है, और जो भी कुछ कुछ काम होता है वो आउटसोर्स करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन, एज आई अर्लियर सेड, की एक्सपर्टीज के हिसाब से होता है। यस, राइट सर। हाँ, तो एंड ऑल्सो, एग्जाम्पल लाइक, हाँ या या पूछिए। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, जैसे कि यू नो पेड प्रेस रिलीज हो गया। जैसे कि पेड प्रेस रिलीज इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रमोट योरसेल्फ इन B2B इंडस्ट्री। सो पेड प्रेस रिलीज जो होता है उसका अलग से कोई वेंडर रहता है, इट्स नॉट इवन एजेंसी। देयर इज दैट एजेंसी गेट कॉल्ड एज अ PR एजेंसी। सो PR एजेंसी से रिलेटेड जो भी काम होता है, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर हायरिंग दैट PR एजेंसी, कि आप उनको कंटेंट दे देते, और PR एजेंसीज उनके जो प्रेस रिलीजेस या फिर जो भी न्यूज होता है, वो अलग अलग उनके पार्टनर वेबसाइट पे प्रमोट करते हैं। सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन इन इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन IT बट ओवरऑल। सो गाइज, इन एसईओ में आपने सीखा होगा ऑन पेज एसईओ, ऑन ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट होता है प्रेस रिलीज, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये पेड वाले पीआर करता है। जिससे पेड पीआर यस। से कैसे होता है गाइस? पेड पीआर से एक तो आप लोगों का जो प्रेस रिलीज होता है वो इमीडिएटली यहाँ पे पब्लिश हो जाता है। जितनी जल्दी राइट। पब्लिश हो जाएगा वो इंटरनेट पे, उतनी जल्दी सर्च इंजन स्क्रॉल करके वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है, जिससे आपके ब्रांड का ऑथोरिटी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। आप लोग अगर फ्री वाला प्रेस रिलीज करोगे तो उसको 3 महीने, 6 महीने, साल भर का टाइम भी लग सकता है अप्रूव होने के लिए। प्लस प्रेस रिलीज बहुत बहुत सेंसिटिव होती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चेक्स, आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको देना पड़ता है, आपका ऑफिस का फोन नंबर लग सकता है, वेरिफिकेशन होता है आपका प्रेस रिलीज जेन्युइन है क्या। वरना कल कोई भी प्रेस रिलीज कोई भी कंपनी का कुछ भी डाल देगा। वही। तो प्रेस यस। रिलीज ये जो होता है ना, ये पूरा ऑथेंटिक करने के बाद में, मतलब पूरा उसका ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद में ही पब्लिश किया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना गाइस, कंपनीज लाइक विप्रो, एसेंचर, टीसीएस, दीज पीपल आर वेरी वेरी मच, इनके पास पॉइंट्स का कोई कमी नहीं होता है, पैसे का कोई कमी नहीं होता है। तो ये लोगों को ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए जो भी पेड पीआर करना है, इनके बजट्स ऑलरेडी साल के पहले ही ये लोग बजट प्लान कर लेते हैं कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के लिए इस साल हम लोग 100 करोड़ खर्चा करेंगे। हाँ, तो जब मार्च एंड खत्म होता है, नया साल शुरू होता है अप्रैल 1 से, तो उसी समय उनके बजट एलोकेट होते हैं उनकी टीम्स को कि वहां डिजिटल टीम के लिए ये बजट एलोकेट कर दिया है, इस टीम के लिए ये बजट एलोकेट कर दिया है, और फिर उस बजट में से साल भर उनको स्पेंडिंग करना होता है। ऐसे काम चलता है। जो मैं भी काम करता था तो हमें भी बजट्स आते थे। और वो बजट्स में तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल ये ऐसे काम का तरीका होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कोई भी कोई भी कंपनी लीजिए यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल टीसीएस। अब टीसीएस का ही पार्टनर कौन है? टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स का एक नया गाड़ी आ चुका है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टाटा सफारी। टाटा सफारी गाड़ी को उनको प्रमोट करना है, तो फिर टाटा मोटर्स यहाँ पे बाहर जाके किसी को काम नहीं देगा। टाटा मोटर्स बोलेगा अरे अपना खुद का ही सिस्टर कंपनी है, कौन सा? टाटा टीसीएस। तो उसके पास ही पूरा काम दे दो, क्योंकि उनके पास पूरा डिजिटल मार्केटिंग का टीम है, अपना ही पैसा अपने पास आएगा, प्लस काम हमारे पास ही रहेगा। तो फिर टाटा मोटर्स का सारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टाटा मोटर्स एक ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि हमारा गाड़ी अभी लॉन्च हो रहा है, तो अभी कैंपेन कौन सा स्केल करो? कैंपेन अवेयरनेस का स्केल करो। 15 दिन के बाद में आप लीड जनरेशन का कैंपेन स्टार्ट करो, और 1 महीने के बाद में गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा बुकिंग आएगा, इसका कैंपेन स्टार्ट करो। फिर ये सारा काम टाटा मोटर्स किसी को दूसरे को नहीं देता है, वही काम यहाँ पे वो टीसीएस के जो डिजिटल मार्केटिंग का जो उनका डिपार्टमेंट है उनके पास आ जाता है।
कल मान लीजिए दूसरा कोई उनका प्रोडक्ट है, जैसे वोल्टास, वोल्टास कंपनी भी टाटा का है, वोल्टास में क्या आता है, एसीज आता है, फ्रिज आता है, अलग अलग, क्रोमा उनका प्रोडक्ट ब्रांड है। तो ये सारे जितने भी जो ये ग्रुप के कंपनीज है, उनका सारा काम ये लोग इधर ही इन हाउस कर देते हैं। प्लस उनके खुद के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, 30 के खुद के प्रोडक्ट्स होंगे, उनको प्रमोट करना है, तो ये सब कुछ यहाँ पे हैंडल किया जाता है। तो बताइए, बोलिए संदीप जी इसके ऊपर अभी। यू राइटली सेड सर, ये जो होता है कि इट डिपेंड्स आपकी कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट, आपका क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपकी टीम का या फिर आपके बिजनेस यूनिट का क्या रिक्वायरमेंट होता है। उस उसके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का वर्क जो होता है वो प्लान होता है। और जैसे ही मुझे एक एक पूछना था हाँ, कि आप ये कंपनी सिर्फ इन हाउस करती है या इनके डिजिटल के लिए भी बाहर के क्लाइंट्स होते हैं क्या, ऐसा मतलब? नाउ इट डिपेंड्स, यदि कोई अच्छा। आईटी कंपनी को आईटी कंपनी ऑल्सो एक्टिंग एज अ हम्म। एजेंसी, मतलब हाँ। वो भी खुद उनके क्लाइंट्स ले सकते हैं, उनके हम्म। दे कैन बी वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बट उनका डिपेंड्स है, अभी उनके पास वैसा टीम भी होना चाहिए, क्लाइंट को पिच करने के लिए उनके पास उतना मैन पावर, उतना रिसोर्सेज भी होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट यस, लाने के लिए भी पिच करना होता है, राइट। यस, सो यस, एज आई यस, करेक्ट। मेंशन इन फोर्थ पॉइंट, मैंने यहाँ पे मेरा स्क्रीन विजिबल है तो फोर्थ पॉइंट देखिए, वहाँ पे क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो होता है, राइट, उसमें मीटिंग, क्लाइंट पिचिंग होता है, कंसल्टिंग होता है, उसके बाद हमें कैंपेन रिक्वेस्ट मिलता है, तो वो डिपेंड्स है। हाँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब काम करता था ना आईबीएम में, व्हेन आई वाज वर्किंग विद आईबीएम इन 2009, तो उस समय आईबीएम का खुद का भी डिजिटल मार्केटिंग का काम था, प्लस आईबीएम के अलग अलग क्लाइंट्स भी थे। जैसे टिस्कली करके एक ब्रॉडबैंड क्लाइंट था, हम लोग ये वोडाफोन हज, पहले हज था, उसके पहले ऑरेंज था। तो ये जो कंपनीज थी, उनका काम भी हमारे पास था। जैसे मैं जब यहाँ पे क्लैरियन में काम करता था, एटीएनटी, अभी तो आइडिया वोडाफोन बन गया, पहले एटीएनटी था, तो एटीएनटी का हम्म, पूरा काम उनके पास था। तो गाइस, ऐसे ये जो बाहर की कंपनीज है, उनका भी काम होता है, इन हाउस भी करता है। अब वो सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हम लोग उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में इन हाउस भी रखते हैं काम, और वो लोग बाहर के भी बड़े बड़े कंपनीज का काम यहाँ पे लेते हैं। राइट सर, फाइन, एनी डाउट सो फार? आई थॉट हाँ, एवरीवन there इज is someone guys, I think Trishula is there, she wants to हाँ ask a question. Yes Trishula जी, पूछिए। सर, मैं अभी 3 साल से यहाँ पे प्रोडक्ट्स रिसर्च है, तो वहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन अभी मुझे स्विच करना है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 3-4 डोमेन पे काम किया है, और सभी काम इन हाउस है, और सब हम ही करते हैं। एक्चुअली मतलब एसईओ, सोशल मीडिया का, इवन वेब डेवलपमेंट भी करते हैं हम। लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब मैं जब अब स्विच करूँगी, तो एक स्पेसिफिक एसईओ में सर्च करना चाहिए मुझे, या ये पूरा सर्च करना चाहिए? आप कंफ्यूज हो कौन से इंडस्ट्री में काम करते हो अभी आप? सीआरओ है, नहीं हेल्थ नहीं, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, हेल्थ हेल्थ इंडस्ट्री ना, इंडस्ट्री, अच्छा यस। अच्छा। तो हेल्थ इंडस्ट्री में कैसा है कि यू नो इफ यू आर वर्किंग विद मल्टीपल, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपने जैसे बोला कि आप वेब डेवलपमेंट का भी काम करते हो, एसीओ का भी काम करते हो, एसीओ और वेब डेवलपमेंट ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ओके। यदि आपको उस टाइप का कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, इफ यू अपडेटेड योर सीवी कि मैंने वेब डेवलपमेंट में भी काम किया है, एसईओ में भी काम किया है, तो यू नो दैट इफ किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा डुअल रिक्वायरमेंट है तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। आई विल रेफर यू, मतलब रेफर मुझे, मैं आपको गाइड ऐसे करूंगा कि यू कैन कोरिलेट ऑल दोस थिंग्स, लाइक whenever you are going to attempt an interview, just make sure that you are going to present your web marketing, web development skills also, ओके। क्योंकि ये आपका Guys, एसईओ रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन कोरिलेट योर प्रोफाइल। हाँ, यस गाइस, ये यही चीज मुझे त्रिशल आपको बताना है, बिकॉज एसईओ एंड टेक्निकल पार्ट गोज हैंड ऑन हैंड, मतलब ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बहुत रहना पड़ता है। तो अगर कल आपने ऐसे कोई प्रोफाइल देख लिया इन जहां दोनों पे, को ना ऐसा था कि बस अभी अपना मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, अभी रखा है। कैन यू गो ऑन म्यूट, हु इज फॉर्मेट देयर? में। हम्म
सो हाँ यहाँ पे त्रिशला, आप वैसे जैसे हाँ संदीप जी ने बोला कि यू मेक अ ड्यूअल हम्म, प्रोफाइल वेर अ कंपनी इज लुकिंग फॉर अ एसईओ एक्सपर्ट प्लस हैविंग नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये बहुत फायदा करेगा क्योंकि कंपनी को एक ही कॉस्ट हम्म, में दो स्किल वाला बंदा मिल जाता है। हाँ तो हाँ यहाँ पे ये बहुत फायदा करता है, और बहुत जगह पे आपके रेज्यूमे को आप बनाओगे ना, तो मेक श्योर कि आपने जो भी टेक्नोलॉजीज पे काम किया, जैसे यू हैव वर्कड ऑन वर्डप्रेस, यू हैव वर्कड ऑन ड्रुपल, यू हैव वर्कड ऑन हम्म, मैजेंटो, और यू हैव वर्कड ऑन एचटीएमएल, ये सारी टेक्नोलॉजीज को मेंशन कीजिए। मेंशन द वेबसाइट्स यू हैव वर्कड ऑन, व्हाट आर द सक्सेस स्टोरीज व्हिच यू हैव क्रिएटेड फॉर द कंपनी। ये सब चीजों को और एसईओ का सक्सेस, ये दोनों को आप ड्यूअल बना के रख सकते हो। बाकी संदीप जी आप गाइड कीजिए, जो मैंने बोला एज पर माय नॉलेज मैं ये आपको। exactly, sir. This is perfect thing that we are on the same page that whatever Trishula is looking out for, she can हम्म, correlate her web development experience along with the SEO so that she will get a preference amongst all the candidates as you have a dual work responsibilities now. Okay. Because एक्चुअली guys, yeah, in the market आपको बोलता हूँ there are 70% people who have only a single skill। जैसे एसईओ तो एसईओ आता है। टुमारो इफ आस्क टू दोस पीपल कि वर्डप्रेस पे ये करने आएगा ना, नहीं ये नहीं पता सर, हमने कभी वर्डप्रेस खोल के देखा नहीं, वो सब डेवलपर ही करता था। लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस गाइस ओवर हियर। आई वाज इंटरव्यूइंग सम पीपल ओवर हियर फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट इन द लास्ट मंथ। तो आई टुक अराउंड 4 to 5 इंटरव्यूज वेयर पीपल हु had applied had an experience of more than 4+ years in SEO। एंड लिटरली व्हेन आई आस्क्ड देम, मैंने उनको पूछा कि ठीक है वर्डप्रेस पे आप मुझे लॉगिन करके दिखा सकते हो क्या, कहाँ पे ये प्लगइन होता है, कहाँ पे आप लोग कौन से प्लगइन्स में कैसे हेडिंग्स को ऐड करते हो, कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन को ऐड करते हो। एंड गाइस इट वाज मतलब शॉकिंग कि उस लड़की ने, वो दो लोगों ने आंसर ये किया कि हमने 4 साल में एसईओ पे काम करने के बाद हमें वर्डप्रेस नहीं पता है, हम सिर्फ डेवलपर्स को Hmm. डॉक्यूमेंट बना के देता है और वो अपलोड करता है। तो गाइस दिस इज द सिचुएशन इन द मार्केट राइट नाउ। तो अगर आपको त्रिशला जी, आपको अगर वेब डेवलपमेंट, आपको एसईओ, ये दोनों अच्छा आता है, प्लस अगर आपको Hmm. सोशल मीडिया भी आना, तो आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आपको वो प्रेजेंट करने आना एक्चुअली चाहिए। हाँ बोलिए। यस सर, मुझे यही डाउट मतलब यही क्वेश्चन है मेरा। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया मतलब ग्राफिक्स भी बनाती, इवन मैंने वीडियो भी बनाए। जो हम हमारे यहाँ पे 4 डोमेन है, तो उसमें एक इंस्टीट्यूट भी है, कोर्सेज भी सेल करते हैं हम। तो उसके जो ऑनलाइन भी कोर्सेस है, उसका भी मैंने वीडियोस भी बनाए। मतलब स्किल सभी Hmm. सभी है। तो वही Hmm. कंफ्यूजन है, मतलब ये मैं सीवी में पूरे नहीं, मेंशन कर सकती हूँ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. You can convert your confusion into confidence. Right. You have एक्चुअली everything now, then कॉन्फिडेंस। you can. Nahin, that's the reason I'm saying, हाँ। you didn't get a right path actually. हम्म Uh, if you have everything, then of course you need to be more confident. Instead of just, getting confused, you can say that, yes, I did this thing, I did this thing, I did all like SEO, then you have a graphic designing, web development. You can do, make sure that whenever you are going to appear for an interview, so हम्म आपका जो भी स्किल सेट आपने काम किया है, you rightly able to present गाइस this. या एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जब आप लोग आपका रेज्यूमे बनाते हो ना, तो मेक हम्म श्योर कि जो वेब डेवलपमेंट को कौन सी स्किल्स लगती है, एसईओ में कौन सी स्किल्स लगती है, ये जरा आप रिसर्च करो, और ये सब जो स्किल्स को ना आपके रेज्यूमे में ऐड करो। क्योंकि जब ह्यूमन रिसोर्स के लोग रेज्यूमे सर्च करते हैं ना, हम लोग एसईओ में कैसे कीवर्ड टाइप करने के बाद में वो कीवर्ड आपके पेज पे है या नहीं वो देखा जाता है, और वो पेजेस हम्म रैंक होता है। वैसे रेज्यूमे भी आपका शॉर्टलिस्ट होने के Hmm. लिए मेक श्योर ये सारे कीवर्ड्स को आप लोग आपके रेज्यूमे में ऐड करो। क्योंकि जब ह्यूमन रिसोर्स के लोग naukri.com से या लिंक्डइन से पेड वाले टूल्स को यूज करके सर्च करते हैं ना, तो उनको फिल्टर्स मिलता Hmm. है कि हाँ ये स्किल्स चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए, वेब डेवलपमेंट में ये आना चाहिए, और वो एंटर करने के बाद में Hmm. उनके सामने वही रेज्यूमे आते हैं जिनमें वो स्किल्स दिखती है। तो गाइस बहुत सारे लोग रेज्यूमे बनाते वक्त उनको ये आइडिया नहीं आती है कि ये चीजों को मेक Hmm. श्योर कि आपके स्किल्स को आपके रेज्यूमे टेक्स्ट फॉर्मेट में रखें, ताकि जब फिल्टर होता है रेज्यूमे, वहां पे आपका रेज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ। तो गाइस ये बाकी के लोगों के लिए भी है। अभी जैसे आप वेब डेवलपमेंट में हो, अभी आपने वेब डेवलपमेंट किस पे काम किया ये आपको अच्छी तरह से पता है। फॉर एग्जांपल आपने वर्डप्रेस पे काम किया, तो वर्डप्रेस में वेब डेवलपमेंट में क्या स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो थोड़ा आप चैट जीपीटी कर लो, कोई भी एआई टूल को पूछ लो, और वो स्किल्स जो है वो रेज्यूमे में ऐड करो। एसईओ में कैसी स्किल्स होती है, जैसे ऑन पेज आता है, टेक्निकल एसईओ आता है, ऑफ पेज आता है, एनालिटिक्स आता है, वेब मास्टर आता है, ये स्किल्स हो गई, वो सब ऐड करो। तो गाइस रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। पीपल व्हाट दे डू इज दे मेक अ रेज्यूमे वेयर दे मिस ऑन ऑल दी स्किल्स, एंड फिर वो बोलते हैं अरे कॉल ही नहीं आया, अपलोड किया था, वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखिए, ये छोटा टिप है लेकिन बहुत ज्यादा काम करता है ये। अच्छा
Exactly, sir. I about to tell this that you need to show all your expertise you have in a हम्म, right way. राइट आपको तभी right. आपको विजिबिलिटी मिलेगा और विजिबिलिटी मिलने के बाद ऑफ कोर्स यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी और इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज बेसिस ऑन दैट you will get a job. And So let me tell you one thing, Trishala, over here. Also, Mhm. make sure you add all the website names in your resume with a proper link, हम्म, because when people check your resume, you can make a PDF format which is basically accessible. Mhm. All the हम्म, links are clickable, so it becomes very much easy for people to immediately access the website and check out the website. So make sure, guys, for this is for all the people over here. Whatever paid tools you have used, whatever paid plugins you have used, whatever websites you have हम्म, made, मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे 2-3 पेजेस का बने दो। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपका मेन क्या है, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, Skill आपका sets. फोन नंबर, Mhm. ये आपका मेन आपको शो करना है आपने क्या काम किया, व्हाट वाज योर सक्सेस इन एसईओ। सो हाउ डू यू मेजर योर सक्सेस इन एसईओ? जैसे आई गॉट द वेबसाइट फ्रॉम 10th पोजीशन टू द फर्स्ट पोजीशन, दिस कैन बी अ सक्सेस yes. इन Mhm. एसईओ। मेरे वेबसाइट पे 2000 ट्रैफिक था, आज मैंने वेबसाइट पे 5000 ट्रैफिक लाया, दैट कैन बी अ सक्सेस इन एसईओ। हमारे वेबसाइट पे इंस्टाग्राम पे 2000 फॉलोअर्स किए, मैंने 8000 फॉलोअर्स किए ऑर्गेनिक वे से, दैट कैन बी अ सक्सेस in social media. So guys, this is how you can measure your success. You can just go on Google and search for how do I measure my success in SEO? How do I measure my Yes, success sir. in social media? Can you please provide me the KPIs? हाँ, KPIs मतलब क्या होता है? की हम्म, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कौन से बेसिस पे, कौन से मैट्रिक पे आपका सक्सेस जज किया जाता है। तो ये आप लोग खुद भी ये छोटी छोटी स्टडीज कर सकते हो, क्लास में तो ये मैं बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे त्रिशला जी, आप ये सब देखिए, आपके हिसाब से करके कुछ गाइडेंस लगता है तो yes, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इसके लिए। और पूछिए Mhm. yes, sir. पूछिए, और क्वेश्चंस पूछिए गाइस। त्रिशला जी, और डाउट्स हो गए तो पूछिए। अनघा जी And है, नीरज जी, हेमंत जी, ऋषि जी, पूछिए। यस। oh, sir. Thank you, sir. Thank you, Sandeep, Mhm. sir. Okay, fine. So, Rohit sir, now I am displaying the job roles and responsibilities. Is my screen up? Can someone confirm? We are up. यस 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 यस। Right. कैन यू So जस्ट see, मेक इट अ लिटिल बिट, what I संदीप, संदीप, हाँ हाँ जरा हाँ कंट्रोल प्लस कीजिए ना, कंट्रोल प्लस करोगे ना तो अच्छा स्क्रीन अच्छा जरा बड़ा हो एक जाएगा। मिनट आपका will put it in a presentation mode नहीं so नहीं, that हाँ, या यू कैन जस्ट डू कंट्रोल प्लस ऑन okay ऑन अ नॉर्मल स्क्रीन, एडिटिंग स्क्रीन, तो हाँ बड़ा हो right जाएगा। या दिस इज वेरी मच गुड विजिबल, या। ओके फाइन सो सी मैंने यहाँ पे जो भी स्किल सेट्स आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग इज अ ह्यूज अम्ब्रेला. Okay, it's not like only one thing. So it's like I would say we can call it. In example, I will give you. It's India. Okay, in India we have multiple states. Like this, digital marketing is. Digital marketing is a huge hub, and in digital marketing you will see this different kinds of responsibilities. Like in digital marketing we have organic result, organic SEO. Okay, that is creating your title tags, updating your website content, doing some keyword research and all. Then we have a AEO, that is a answer engine optimization. That is one of the best trend is going on in the industry as of now. ACO is means what you need to uh, understand or rank your keywords, your business keywords or your services or product related keywords. But AEO is nothing but your answers. Like you need to frame of questions, and because nowadays what happened, if someone is searching on if someone is putting a question on Google search or any of the search engine, then your website should get ranked there. So that's the reason AEO is came into picture, that is answer engine optimization. So again we have a social media management. Sorry, I forgot second point. So we have a paid advertising. Paid advertising means everything it get covered. Like you have a Google advertising, then you have a social media advertising. It covers everything like your Meta ads, your LinkedIn ads, and MSN also. Microsoft is also another kind of we have a ad platform there. So all kinds of paid ads job roles you will get in industry. Then we have a social media management related, all this stuff like creating your social media content, which will will clear you different than your competitors. Okay, what kind of creatives you are creating, and you're posting it on social media. So all those it's your creativity, it's your responsibility once you started working on it. So this kind of social media management role we also available. Then we have analytics. As Rohit sir has said, many tools we have like a Webmaster, we have then Google Analytics, we have
Adobe Analytics is one of the paid analytics which is used by most of the IT and BFSI organizations. So, this kind of roles you will get. In analytics, you need to create multiple types of reports. Okay, then data operations you need to do. Whatever the campaigns going on, whatever the organic results you are getting, you need to work on that data operations and you need to create some reports so that, you can convince your stakeholder or you can convince your clients that you need to or do such kind of corrective measures for your campaign and for your digital marketing work. So that kind of work role you will get it. Then again, most important thing is your content and creatives. Content is nothing but writing your content with respect to your ad copies also, then your social media content, your website content, your paid press releases related content, everything which get covered into content related things. Then we have a email marketing and newsletter related. Email marketing, we have Eloqua is one of the tool we have, paid tool we have available. Then, if you're doing it at small scale, then we have a MailChimp. Okay, MailChimp is also one of the best tool where you can work on email marketing templates and newsletters. So this kind of responsibilities you will get it. Again, as rightly said, key web designing and web development is a part of digital marketing because website updation, website maintaining the website and everything. It should be in line with your digital marketing strategies. Right. So then and then your website will get reflect or it can be used as a marketing tool. Right. It is a asset. Website is nothing but its company's asset. How you can utilize it properly, basis on that you will get output of it. Then again, we have a event management related responsibilities. So event management nowadays, this is one of the live example that we are getting. That managing event, it's also event like this. Though this is a online stuff is going on, so that comes under event management. How you are scheduling, how you are promoting your event across different teams. So that is also one more responsibilities we have. Then we have a external internal communication. Means if every company has a communication related stuff. They need to communicate with their clients, investors, then with the people. If a company is a public listed company, then they need to share some documents or some reports. They need to publish it, circulate it over the websites and newspaper articles. They need to publish in a multiple magazines. So that kind of work is come under external and internal communication. And last one is your PR management. PR management, nothing but your public relations. How you can uh, keeping update of your product and services over the audience, like over the internet. You can publish it in, we have multiple news like Times of India, Hindustan Times, and all. So that kind of thing, managing, sharing our news, sharing our company information, which help us to, get highlighted over the competitors. So that can come under PR management. So this kind of different roles you will get in digital marketing. So over to you guys. If you have any questions, let me know. Guys, no questions over here. Anuradha ji, Hemant ji, Rishikesh, Kunal, Manish, Shrutika, Sonam, Suvarna ji, Trishula, Vanita. कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए. Sir, I want to ask. हम्म. So now I'm pursuing digital marketing and alongside I'm doing pursuing masters also in marketing and management. So how can I combine both like digital marketing and marketing management to land a good job? So like, do you have any idea about it? I'm not. Can you please repeat your question again? Which Yeah, course you are going? Which academics you are doing? I'm doing PGDM in marketing and management. Okay. Yeah, and currently I'm pursuing digital marketing course also. So how can I Mm-hmm. combine both like whatever I'm studying currently? Mm-hmm. So what jobs are available in the market and like how to like choose which role I should go for and how can I combine both like digital marketing and also the management skill I'll be learning along. Mm-hmm. I got your point. That is a
I will correlate this with my own profile. I also did MBA in marketing. Only you have, your course, your academics is post graduation diploma, right? So you can, you can apply in a industry, various IT organizations or various BFSI organizations also. In-house team also you can, you can work with the corporates because as you have a management background, right? And basis on that management background your digital marketing course will be very, very much value addition to this. You can correlate your management academics with your digital marketing skill sets, what you are learning or pursuing right now. Right. So whenever you are updating any CV or whenever you are applying for any job now, you can mention it that ki, I did my management studies also, and along with this, I do have a digital marketing skill set. So I can promote the website, I can promote your products and services. So that can be your value addition for your interviews and for job applications also. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Yes. Guys, any more questions over here? Anagha ji, Rishikesh ji, Hemant ji, Madhuri, Pashwa, Manish, Sakshi. Sakshi, got questions? Mridul ji. So if you have any questions, you can ask. We have the last 2 to 3 minutes for the session to end. So before that, अगर आपके कोई questions होगी तो guys पूछिए. No questions, guys? Sir, I wanted to ask how can we Yeah. learn about paid campaigns? How How can we? can we, because I don't belong from that marketing background, but I'm running on my own. But how can I do it more judiciously and get more results? So, is there any videos or any tutorials or any course that you can suggest? So you're working as a digital marketer anywhere? No, sir. I'm running my own business. Okay, okay. You are an entrepreneur. Okay, right. Yeah, You're doing it for your own. Is my yeah. understanding correct? Yes, sir. Okay, okay, cool. So what is what are the challenges that you are facing? Sir, right now, it's been a Mm-hmm. year since we started doing the paid campaigns. So I just, Mm-hmm. matlab, I don't have in-depth insights into how should I Which optimize my platform? campaigns. I And got a yeah, point. Like which platform you're running the paid campaigns? it's on Amazon and on Uh-huh. Blinkit, Acha, their so own you are portal. promoting it on portals. Yeah. E-commerce portal. Okay, Yes. fine. Fine. So, I thought ki it is on Meta or Google, so I would have suggested to connect with the, Google or, Meta support team to help you out. But for Amazon, now you can do one thing. I think Amazon web portal, the admin portal gives you a guidance, right? To, get in touch with your, how you can promote, how you can add your discounts, right? So Now, if you're that working support with. I have got, but if I Yes. want to Mm-hmm. uh, increase it more, the growth Right. is not much Mm-hmm. from from them. Right. So you can do one thing I will suggest you. You can analyze your competitors, what they are doing. Yeah. Right. This is first strategy I will suggest you. And Mhm. basis on that, you can change your ad copies and creatives, basically. So whatever the Okay. campaigns you are doing it now. So, Mhm. with respect to competitors, you can go. If our regular ads are not performing, then you need to understand that where we are lacking. Right. If your Mhm. competitor is doing well, then obviously, I'm not saying copy them, but you need to Mhm. analyze their ad copies or the creatives, whatever they are promoting it, and basis on that Okay. you can make the necessary changes. This is the first thing that we'll suggest you. Second most important thing, you can update your Amazon or whatever the paid platforms you have now, that content you can update your own. So once you Mhm. update your content, I'm not saying you just change your description and product details or not, but you can tweak here and there so that your content will look like a fresh one, and that Okay. will help you to trigger it out, because your quality score of your ad and the ad and your product content matters a lot, right? If you Mhm. fulfilling that requirement, what obvious you will get an opportunity
or to reach out to your required or target audience. Okay, you can try two things now. Okay, sir. Yeah, Sakshi, I also would like to add something over here because Yeah. when you run Amazon ads or when you run TikTok ads, each and every platform has a dashboard where Yeah. basically you get all the data of the campaigns. You can select the date range in which you can see all Mhm. the important metrics like the clicks, the impression, the Yeah. CTR, the average CPC you got. So you Mhm. can check out these metrics as well, because how much impression my ad is getting. The more major KPIs which you can track over here is basically the CTR, the number of times your ad was shown against the number of times the people actually clicked your ad. Click मतलब on it. कितने लोगों ने आपके ad को देखा, कितने लोगों ने ad को क्लिक किया, वो परसेंटेज Mhm. देखिए। आपने अभी Amazon पे आप लोगों को कीवर्ड बेस्ड ऐड भी रन करनी आती है कि कौन से कीवर्ड के लिए ऐड दिखाना है आपका। तो आपके कीवर्ड्स आर दोस कीवर्ड्स रेलेवेंट टू योर ऐड कॉपीज, आर दोस कीवर्ड्स बेसिकली प्रेजेंट इन योर ऐड व्हेन यू Mhm. अपलोड द प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, इट विल आस्क यू सेम लाइक द पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सब कुछ Mhm. पूछता है Yeah. आपको। हाँ, वो सारी चीजों में आपके कीवर्ड्स प्रेजेंट है क्या, आपके ऐड को कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। नॉर्मली कोई भी अगर Amazon पे अगर आप रन करते हो तो सीटीआर देखिए कितना आ रहा है। सीटीआर इंपॉर्टेंट है आपका। सीटीआर अगर Okay. आपको अच्छा आ रहा है तो फिर यहाँ पे अगर सीटीआर अच्छा आ रहा है तो ये समझ लोगे आप लोग कि बाबा लोग क्लिक करें, लेकिन लोग एग्जिट कहां से कर रहे हैं, बाबा लोग ऐड टू कार्ट तक आ रहे हैं या फिर वहां से ऐड टू कार्ट के पहले ही एग्जिट कर रहे हैं, बिलिंग पे ही एग्जिट कर रहे हैं। वो फनल्स आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका ऐड कौन से टाइम पे आप रन कर रहे हो, विच आर द पॉपुलर टाइम्स यू नीड टू रन योर एड्स। ये जरा कुछ मैट्रिक्स ऐसे इमीडिएटली 2 मिनट 3 मिनट में हम लोग ये आंसर नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं कुछ Oh, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बता देता हूँ। द मेन इज द टाइमिंग, द एड में कीवर्ड्स का यूज करना, आपका इंप्रेशन वर्सेस क्लिक्स का सीटीआर डेटा क्या है, आपके एड का क्वालिटी स्कोर क्या है, ये चीजों पे थोड़ा स्टडी करो। उसमें आपको यहाँ पे कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं, because we don't have your campaign in front of us and in this small such yes. a small time period we will not be able to exactly tell you where the problem is, but these are the overall things which a paid advertiser should look for. This is what I think. Okay, sir. Um, Thank you. Yeah. साक्षी, I also want to add something like जितना हो सके SKUs भी थोड़े ज्यादा रखो, क्योंकि Okay. हम जितने SKUs रखते हैं उससे भी काफी हमारी विजिबिलिटी बढ़ती है और रिव्यूज पे भी काम करना होगा। Yes, तो yes, 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 रिव्यूज perfect. और SKUs ये सब होना बहुत जरूरी है, और मेक श्योर कि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, वो जल्दी Yes, से आप yes, sir. वापस उसको स्टॉक में ले आओ। तो उससे क्या होता है, हमारा विजिबिलिटी में भी फिर वो फर्क नहीं आता है। Definitely. Like this is what I have also experienced, so that's why. Thank you. Thank you. No problem. You got your solution now, Sakshi, huh? You have asked one question, you have got three suggestions. Yes, yes, So sir. that's the reason we need to come ahead and ask, then you will get few details or suggestions. Yeah. Any more questions, guys, over here? Anaga ji, Anuradha ji, Rushikesh, Madhuri, Parshva. Any more questions? So, Sandeep ji, I think we are done with all the questions. And guys, again, the last round, any more questions over here? तो संदीप जी ने गाइस जितना हो सकता है पिछले 1 घंटे में अपना जर्नी बताया। ओवरऑल एक फास्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ही स्टार्टेड हिज करियर इन डिजिटल मार्केटिंग 2015. इट्स बीन अ डेकेड नाउ, more than 10 years he is working in digital marketing industry. He started with a company which was into किसमें था आपका पहला कंपनी? Engineering It was industry. an engineering company. उसके बाद में he worked with market research company where his clients were basically from North America, Canadian clients, European clients. Again he came back to Indian company जहाँ पे उनका target audience SAP का basically product था उनका। तो SAP के लिए बड़े organizations को target कर रहे थे जो decision makers होते हैं, chief technology officers, chief financial officers, क्योंकि SAP एक ऐसा product होता है जिसमें कंपनी की सारी चीजें, compliance, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, आपका बेसिकली कॉस्टिंग, सारी चीजें उसमें आप एक ही जगह पे हैंडल कर सकते हो। तो सैप इज बेसिकली वेरी कॉस्टली लाइसेंस व्हिच कैन बी अफोर्डेबल बाय बिग कंपनीज ओनली। तो उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया और इस ऑर्गेनाइजेशन में उनका काम है बेसिकली उनके कंपनी की जो भी सिस्टर कंपनीज है उनकी खुद की, उनके सबके लिए जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए एड्स रन करना, उनके लिए एसईओ के थ्रू रैंकिंग्स लाना। और इनके पास टीम है जो टीम उनके लिए काम करती है। जहां पे उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, उन्होंने बोला उनके पहले की कंपनीज में वैसे काम को उन्होंने यहाँ पे आउटसोर्स किया है। तो ये सब एक्सपीरियंस आप लोग जब जॉब पे जाते हो ये धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। So guys, this is like this is the
we have done with this session, guys. So, Sandeep ji, we would really like to thank you so much for the inputs you have given over here. And guys, we will be keeping like ऐसे ही हम लोग डेमो सेशन, ये जो सुपर सेशंस होते हैं, ये रखते रहेंगे. तो guys, you can get connected with Sandeep on LinkedIn. आप लोग संदीप पाटिल ये नाम से सर्च कर सकते हो, या फिर आप हमारा जो PSDM का ग्रुप है उसमें संदीप जी का LinkedIn प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर दूंगा. So, Sandeep ji, thank you again from all of us. From School of Digital Marketing for adding value to our students, and let's hope for the One more sessions thing also. before, Yeah. before, yes, sir, I would like to add one more thing here. So, guys, in the flow that I'm not able to add few more things. Like, you need to read a lot. You need to visit multiple content. You need to search for industry trends. If you want to do a serious career in digital marketing, or you want to be at the top of your competition, then you need to keep update yourself. You need to browse Yes, many guys. articles. This is the most important thing because Mm, SEO, guys, पिछले 12-14 साल से हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, yes, SEO जो 2011 में था और आज का जो SEO बहुत डिफरेंस है. और आपको जैसे पता है, कंपनीज लाइक एप्पल, मेटा, गूगल, दीज आर सो मच डायनेमिक कंपनीज कि ये yes, अपने कंटेंट को इतना अपडेट करती है, अपने प्रोडक्ट्स को इतना अपडेट करती है. तो द बेस्ट थिंग टू सर्वाइव इन डिजिटल मार्केटिंग इज कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड. और अपडेट रखने के लिए देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, जैसे सर्च इंजन लैंड है, सर्च इंजन जर्नल है, सोशल समोसा yes, है, moz.com है, neelpatel.com है, वर्ड स्ट्रीम है. ये सब वेबसाइट्स आपको बहुत रिच कंटेंट देगी, जो बहुत सारी चीजों के बारे में आपको नई चीज समझ में आएगी. सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जर्नल्स, ये वेबसाइट सबसे ज्यादा अपडेट्स आपको बताएगी. तो मेक श्योर आप इन वेबसाइट्स को, हम लोग जैसे पेपर पढ़ते हैं ना अब अपडेट्स रखने के लिए, वैसे रोज एक 10 मिनट के लिए ये वेबसाइट्स को आप देखते जाइए, ताकि आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो समझ में आएगा. बिकॉज इंटरव्यूज में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग आपके खुद को अपडेट कैसे रखते हो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि जस्ट एज दिस इज अ वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री, तो आप लोग आपके खुद को अपडेट कैसे रखते हो. तो द बेस्ट इज लाइक कीप ऑन रीडिंग दीज वेबसाइट्स. मैं वापस बोलता हूं, सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जर्नल, wordstream.com, मोज ब्लॉग, ये 4-5 वेबसाइट्स बहुत अच्छी है. इसके अलावा और भी आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे इनके ही, तो ये फॉलो कर सकते हो आप लोग. So guys, thank you for attending this session over here. Thank you so much. I'll update you about the upcoming event, upcoming sessions again, and we'll try to we'll try our best to add value. The next session which I'm planning to keep will be a HR session, human resource का session होगा, जहाँ पे basically hiring करते वक्त students से क्या expect किया जाता है, human resource जो आपको hiring करता है, क्या क्या rounds होता है interviews के, कौन से basis पे selection किया जाता है, कैसे आप लोग ड्रेस कोड करना है, आपका बेसिकली फ्लो कैसे होना चाहिए, रेज्यूमे में क्या क्या चीजें वो एक्सपेक्ट करते हैं. ये सेशन आई विल बी कीपिंग एंड आई जो नेक्स्ट होगा, लेकिन मैं आप लोगों को उसके बारे में अपडेट करूंगा कि ये सेशन कब होगा. तो आज का ये सेशन हो चुका है गाइस. Thank you so much for attending. Sandeep ji, thank you so much again from School of Digital Marketing and the whole team over here for putting the value over here to our students. Thank you so much. Hello guys. Thank All you, the sir. best, guys. Okay. Yeah, You can yeah, connect with me on LinkedIn. Thank you, sir. Okay. yeah. If you need any guidance, we'll be there. Okay. Chalo, Thank see you you, guys. sir. Chalo, yeah. Thank you, Thank sir. you. so much, sir. Thank you. Yeah. Thank you, Take sir. care.